Hey everyone, welcome to the Autism Without Borders YouTube channel. Here you will find valuable insight about autism, developmental delays, neurological disorders, their red flags, potential causes, and effective interventions. ऑटिज्म और दीगर न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोडेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की अलामात, उनकी वजूहात, उनके असरात और मुमकिन हल के बारे में मुकम्मल आगाही। On behalf of Autism Without Borders, I warmly welcome you all to our first session of Parents Training Program. And thank you so much, everyone, for joining us today. My name is Kiran Tabassum. I am an associate psychologist and project coordinator at Autism Without Borders. And I am the moderator of today's session. Also, we have today our first session of Parents Training Program. तो हमारा जो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम पेरेंट्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, प्रैक्टिकल गाइडेंस और वैल्यूएबल नॉलेज प्रोवाइड की जा सके ताकि वो बच्चे अपने बच्चे की वेलबींग को बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकें और उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जो हमारा टॉपिक है आज, दैट इज द रोल ऑफ कन्वेंशनल एंड फंक्शनल मेडिसिन इन द मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड अदर स्पेशल नीड्स। And we have two amazing speakers with us. First, I would like to introduce Dr. Azhar Rafi. She is a consultant pediatrician, lactation consultant, community health educator, and our project director of Autism Without Borders. She is also a life member of Pakistan Pediatric Association, member of Pakistan Islamic Medical Association, and member of Islamic Circle of North America as well. I am very thankful to Dr. Azhar Rafi because for her continuous support, guidance, and efforts in making this parents training program possible. Without her, this parents training program is not possible. Now we have one amazing another speaker as well. She is Miss Sadaf Nazia. Thank you so much, Ms. Sadaf, for giving your time with us. Thank you. Ms. Sadaf Nazia is the founder of Childhood Brain Health. She is a certified functional medicine practitioner, functional genomics practitioner, pediatric nutrition specialist and gut health practitioner. आज ये दो स्पीकर्स हमारे साथ मौजूद हैं और ये अपनी वैल्यूएबल नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और बताएंगे कि कन्वेंशनल और फंक्शनल मेडिसिन किस तरह चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और अदर स्पेशल नीड्स को सपोर्ट कर सकती है, उनकी हेल्थ को और उनके ओवरऑल वेलबींग को किस तरह सपोर्ट कर सकती है। सो विदाउट टेकिंग मोर टाइम, आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर अज़रा to please start this session. And I hope everyone will get the most benefit and you will have the most informative and benefits session for you. Thank you. So over to you, Dr. Ezra. Thank you. Thanks a lot for introducing me, but I'm not so amazing. I'm just a pediatrician and trying to help the community of children with the special needs and autism. I'm trying to. क्योंकि और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनकी मदद से आगे चल रहे हैं और म्यूचुअल कोलैबोरेशन जो है और म्यूचुअल इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी है, उस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। Yes. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी ऑल बिलीव ऑन हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन। I always start with this caption. And what we believe, we need to practice. And what we need to practice, we need knowledge. That's why we are here. हम इसीलिए यहाँ पे मौजूद हैं ताकि हम आपस में एक दूसरे से सीख सकें और हर रोज़ हम कोई नई से नई चीज़ सीखते रहते हैं। किरण, आप ये ज़रा ख्याल कीजिएगा कि हमारे टाइमिंग्स जो हैं वो बिल्कुल सही रहें ताकि हम फिर पेरेंट्स के साथ ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं। Yes. ठीक है, तो आप ज़रा टाइम मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। आपको पता है ये टॉपिक इतने बड़े हैं कि ना चाहते हुए भी बाज़ दफ़ा जो है ना वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसको मैं स्लाइड शो पे कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा सही तरह से विजिबल हो। तो जब हम हेल्दी चिल्ड्रन हेल्दी नेशन की बात करते हैं तो फिर हमको और फिर हेल्दी मदर्स भी चाहिए, है ना। तो फिर इसीलिए जो है ना यही होलिस्टिक अप्रोच भी होती है कि हम दूर तक सोचे हैं कि बाज़ दफ़ा जो है वो बच्चों के चक्कर में माएँ अपने आप को भुला देती हैं ना। तो उस पर भी हम करते रहे हैं प्रोग्राम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कन्वेंशनल एंड फंक्शनल मेडिसिन, हाउ दे कैन वर्क टुगेदर फॉर हेल्पिंग कम्युनिटी विद ऑटिज्म एंड स्पेशल नीड्स, है ना। तो ये हमारा मेन टॉपिक है।
और इतने दिन से आप लोग ये फ्लायर देख रहे हैं कि पैराडाइम शिफ्ट इन ऑटिज्म, इज देयर रियली अ पैराडाइम शिफ्ट इन ऑटिज्म? तो इस पे हम बात करेंगे कि जितना हम समझ रहे हैं क्या वाकई, क्योंकि अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं कि इज इट अ डिजीज और इज इट अ डिसऑर्डर, है ना? तो ये भी हमारे जहन में चीज़ें होनी चाहिए ना सारी। अभी कोई ऐसी साइंटिफिकली कोई प्रूफ नहीं कर सका है, लेकिन एटलीस्ट हमारे जहन में होना चाहिए ये चीज़, है ना? अच्छा, इसमें क्योंकि हम काफ़ी अरसे से जो है बहुत सारे वेबिनार्स वगैरह करते रहे हैं, और इस टॉपिक पे हमने अबाउट 2-3 years बैक ये टॉपिक हमने किया था कि अपडेट्स ऑन इंटीग्रेटेड अप्रोच इन चिल्ड्रन हेल्थ, और ये टॉपिक हमने किया था बतूल मिर्ज़ा। बतूल मिर्ज़ा इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट हेल्प फॉर द कम्युनिटी, और हॉलिस्टिक वर्कर हैं वो। तो उनके साथ हमने किया था, और दिस प्रोग्राम वाज इन पर्सन, है ना? तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो है हम किस किस से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और किस किस तरह से जो है हम इसको आगे ले जा सकते हैं। तो इस पे मैं थोड़ा सा बात करूंगी। और इसमें जो है ना, देखिए, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने लिए नहीं बोलते, चिल्ड्रन राइट्स आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हमें उनके लिए बोलना है ना, हमें उनके लिए बोलना है और उनको आगे लेके चलना है। क्योंकि जो है वो कोई नारे नहीं लगाते, कोई जुलूस नहीं निकालेंगे, उनके साथ ज्यादती होती है और वो कुछ भी नहीं बोलते, है ना? तो हमें जो है जब तक हम मिल के ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं होगा, है ना? और इसमें आपस की हमको जो है वो निकाल देनी चाहिए। हमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, हम सब लोग मिल के काम कर रहे हैं ना। ये मैं बिल्कुल जो है ना शॉर्ट सा आपको बता रही हूँ कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन है ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर, और दिस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट का कि अर्ली डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और इसमें जो है अर्ली एंड राइट इंटरवेंशन, बाज़ दफ़ा इंटरवेंशन तो होता है लेकिन राइट नहीं होता है, टू गेट द बेस्ट पोटेंशियल। और इसके लिए हम अवेयरनेस के प्रोग्राम्स कर रहे हैं फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चिल्ड्रन केयर गिवर। ना सिर्फ ये कि उनके लिए, बल्कि हम स्कूलों में जाके स्क्रीनिंग भी करते हैं, उनको भी जो स्क्रीनिंग सिखाते हैं। और ये हमने काफ़ी जो है चैरिटी बेसिस पे भी स्टार्ट किया हुआ है। फिर हम जैसी नीड होती है वैसे उसके हिसाब से जो रेफ़र करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, फॉर इंटरवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन एंड फॉलो अप। बिल्कुल, इसका जो है ना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है। और इसके अंडर ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर के अंडर जो है हमारा कोलैबोरेशन जो है वो कनाडा में भी है, साउथ एशियन फैमिली सपोर्ट सर्विसेज के साथ भी, और भी बहुत सारी कंट्रीज में हमारा काम चल रहा है। लेकिन मेन हमारा जो है पाकिस्तान चैप्टर है, और यहाँ से हमने जो है इंटरनेशनल ऑटिज्म के ऊपर जो है वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स थे। तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूंगी व्हाट इज ऑटिज्म, क्योंकि वी ऑल नो, लेकिन स्टिल आई थिंक देयर इज समथिंग लाइक, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो है अभी पिछले दिनों एक बच्चा आया जो कि बिल्कुल भी ऑटिस्टिक नहीं था, लेकिन उसको ऑटिस्टिक समझ के मेरे पास भेजा गया, और काफ़ी वो टीनेजर था। तो हर बच्चे को हमें मुख्तलिफ तरीके से डील करना है। और ऑटिज्म को हम देखते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ग्रुप ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। और इसमें दोनों जो वर्ड्स हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल एंड डिसऑर्डर, दिस इज नॉट अ डिजीज, अप टिल नाउ इट इज टेकन एज अ डिसऑर्डर। और जब हम डिसऑर्डर और स्पेक्ट्रम दोनों कहते हैं तो एक्चुअली दीज आर द क्लस्टर्स ऑफ सिम्टम्स इन्वॉल्विंग अ वाइड रेंज ऑफ स्किल इम्पेयरमेंट, ना फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर। और इसमें 3 मेन एरियाज होते हैं। इसमें एक तो ये है कि डिफेक्ट्स इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है ना। फिर इसके अलावा रिपीटेड रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट्स होती हैं। और ये जो है ये कुछ चीज़ें जो है हम देखते हैं कि रिपीटेडली ये आएंगी, और सदफ नाजिया हमारे साथ हैं, वो भी इसको रिपीट करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि 3 मेन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट विच इंक्लूड डिफेक्ट्स इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, देन देर इज अ सोशल इंटरेक्शन में जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, और प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल रिपीटेटिव मूवमेंट्स और सेंसरी की प्रॉब्लम्स होते हैं ना। ये बहुत ही डिटेल चीज़ें हैं। अच्छा, इसमें हमें देखना है कि फिर हमें करना क्या है, हम कैसे इसको डायग्नोस करें। क्योंकि डिफ़िकल्टी ये है कि डायग्नोसिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट है,
क्योंकि कोई ऐसा सिंगल मेडिकल टेस्ट नहीं है लाइक अ ब्लड टेस्ट, जैसे हम टाइफाइड या टीबी या बहुत सारी बीमारियों के लिए कर लेते हैं, इवन मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज के लिए भी हम बिहेवियर के साथ वो देखते हैं और हम डायग्नोस कर लेते हैं। इसमें हमको सिर्फ वी नीड टू फोकस ऑन चाइल्ड बिहेवियर एंड डेवलपमेंट टू मेक अ डायग्नोसिस। और हम सबको किस चीज़ पे काम करना है कि जब हम डिटेल हिस्ट्री वगैरह लेते हैं और एग्जामिन करते हैं तो हम इस 4 चीज़ों में क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 क्या है कि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। इसका क्या मतलब है कि ऑल माइलस्टोन्स आर डिलेड है। देन सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है कि बच्चे का जो है ना वो इधर उधर की दुनिया से इतना वो ताल्लुक नहीं रखना चाहता, अपने आप में होता है ना। फिर इंटेलेक्चुअल बाज़ दफ़ा थोड़ा सा कॉग्निशन एज अप्रोप्रिएट नहीं होती है या बहुत ज़्यादा एज अप्रोप्रिएट नहीं होती है। जिस तरह से आईक्यू हम देखते हैं इसी तरह से डीक्यू भी देखते हैं, डेवलपमेंट क्वोशंट। तो जो जीडीडी है वो समझिए कि डेवलपमेंट क्वोशंट है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो है उसमें आईक्यू है। और फिर उसके बाद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसमें और एडीएचडी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं। तो इसके लिए हमें स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस किस तरह से कि डिटेल हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, एंटीनेटल, जब मदर प्रेग्नेंट है, मैं कोशिश करूंगी कि जितना इसको सिंपल बता सकूं। हमारे साथ बहुत सारी मदर्स हैं और डिफरेंट लेवल की हैं, जाहिर है बहुत सी ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और सब कुछ जानती हैं, और बहुत सी ऐसी भी होंगी जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होंगी। हमारे साथ ऐसी भी मदर्स हैं जो कि डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, उनके बच्चे भी विद ऑटिज्म हैं। तो एंटी नेटल, नेटल, पोस्ट नेटल है ना। फिर जो है हिस्ट्री ऑफ साइनोसिस और प्रोलॉन्ग जॉन्डिस, कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो नीला तो नहीं पड़ा था, उसको बहुत अच्छे तक जो है जॉन्डिस तो नहीं रहा था। फिर न्यूट्रिशन उसकी कैसी है, वैक्सीनेशन हुई है कि नहीं, फिर फिट्स की हिस्ट्री तो नहीं है, झटके तो नहीं पड़े, फिर जिसको मेनिंजाइटिस एनकेफ्लाइटिस यानी गर्दन तोड़ बुखार भी कहा जाता है वो तो नहीं हुआ उसका। फिर हाइपोक्सिक इस्केमिक एनकेफेलोपैथी एट बर्थ, किस वक्त रोया, डिलेड क्राई तो नहीं थी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको हुए, ताकि सारी चीज़ें हमारे पास ट्रिगर्स, वी नीड टू फाइंड आउट द ट्रिगर्स, क्योंकि ट्रिगर हर बच्चे में अलग होते हैं चाहे वो ऑटिस्टिक है या नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होते हैं फिर वो हम कराते हैं, एनीमियाज हैं, एनीमियाज में ज़ाहिर आयरन डेफिशिएंसी भी हो सकती है, B12 की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, फोलेट की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। फिर एंडोक्राइन देखना ज़रूरी होता है, फिर जहाँ ज़रूरी हो वहाँ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के टेस्ट होते हैं जो आजकल हम बहुत सारे कर रहे हैं। फिर मजीद जो है वो EEG, MRI, अल्ट्रासाउंड एज पर नीड, है ना। तो जैसा जिस बच्चे की हिस्ट्री होती है, उसकी जो ज़रूरत होती है उसके, ये रूटीन टेस्ट कहलाते हैं बहुत से, और बहुत से जो है वो एडवांस टेस्ट कहलाते हैं ना। तो जो हमने इंटीग्रेटेड अप्रोच इन चिल्ड्रन हेल्थ की बात की, तो सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि हु इज चाइल्ड। अकॉर्डिंग टू CRC, सेंटर फॉर जो है यूनिसेफ का बाकायदा जो है वो पास हुआ था, तो उन्होंने क्या डेफिनेशन दी थी कि 18 ईयर्स तक चाइल्ड है। क्योंकि जब हमारा शनाख्ती कार्ड बन जाता है, ID बन जाती है, और जब ड्राइविंग की इजाज़त होती है ना, तो उसको फिर हम जो है वो कि ये चाइल्ड है, चाइल्ड से फिर वो एडल्ट बन जाता है। लेकिन आई शुड ऐड दिस कि अप टू 12 तो ठीक है, लेकिन 13 से वो टीन एज और एडोलेसेंस होता है, उसके प्रॉब्लम्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं ना। तो हमारे जहन में ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और अब ज़ाहिर है प्यूबर्टी और इस पर भी अक्सर हम बात करते हैं। फिर व्हाट इज हेल्थ, है ना। हेल्थ की इतनी जो है वो बड़ी डेफिनेशन है, जस्ट एब्सेंस ऑफ अ डिजीज इज नॉट हेल्थ। हेल्थ इज क्या है कि फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग टू बी द पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ये हेल्थ है। और उसके बाद हम इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात करेंगे ना। तो मेंटल हेल्थ जो चिल्ड्रन की होती है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं, इमोशनल माइलस्टोन्स, सोशल माइलस्टोन्स, है ना। कि अगर 6 मंथ का बच्चा है तो उसका सोशल माइलस्टोन क्या होगा, है ना। 1 ईयर का उसका सोशल माइलस्टोन क्या होगा, ये बहुत ही डिटेल सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहे जो कि हमारे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के प्रोग्राम में भी है। और मेंटल इज नॉट सिंपली द एब्सेंस ऑफ ए मेंटल डिसऑर्डर। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन किसी चीज को मिला लेना, उर्दू में जिसे हम कहते हैं कि यकजा करना मजमुई तौर पे। तो इंटीग्रेशन में डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु मिक्स, और डिफरेंट सिस्टम्स को मिक्स करना भी है।
इंटीग्रेटेड केयर फॉर किड्स यूएसए में एक प्रोग्राम है जो कि चाइल्ड सेंटर्ड सर्विस है, और इसके मॉडल में रिड्यूस एक्सपेंडिचर, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर फॉर चिल्ड्रन विद प्रिवेंशन एंड अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट है। इसी तरह आलमी अदारा WHO जो है उसका प्रोग्राम है IMNCI, जो कि पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन भी करता है ना, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यू नेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। बट समहाउ मेंटल हेल्थ इज जो है थोड़ी सी हमारे यहाँ निगलेक्टेड है, लेकिन अब लोग काफ़ी इसमें अवेयरनेस हो गई है और लोग अब कर रहे हैं ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो कि इस वक्त है, और इस वक्त से ज़्यादा और बहुत सारे हमारे जो प्रोग्राम हैं वो हमेशा मिक्स्ड होते हैं। पेरेंट्स भी होते हैं उसमें, थेरेपिस्ट भी होते हैं, कंसल्टेंट्स भी होते हैं, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चिल्ड्रन केयर गिवर सब होते हैं। तो इंटीग्रेशन किस किस की ज़रूरत है कि डॉक्टर्स, पीडियाट्रिशियन, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, थेरेपिस्ट, ऑल होलिस्टिक हेल्थ केयर वर्कर्स बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बतूल मिर्ज़ा का जिक्र किया। फिर नेचुरोपैथ हैं, फंक्शनल मेडिसिन है ना, ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास जो है, सदफ नाजिया वो कितना ज़बरदस्त काम कर रही हैं। तो हम सब जब तक मिल के काम नहीं करेंगे हमारा काम उस तरह से परफेक्ट इंटीग्रेटेड मॉडल बन नहीं पाएगा। और ऑन द टॉप इज पेरेंट्स, फिर टीचर्स को हमें ज़रूर मिलाना चाहिए, इसीलिए हम स्कूलों में प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर चाइल्डहुड एजुकेटर्स हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर जो कि ज़ाहिर है कनाडा, USA और पाकिस्तान में भी होते हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड मेडिसिन जो है वो क्या है कि इट इज़ एन अप्रोच दैट कंबाइंस द कन्वेंशनल मेडिसिन एंड ऑल ऑल्टरनेटिव मेडिसिन एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज। इसमें ज़रा फिर एक्यूपंक्चर भी आ जाता है और होम्योपैथ भी आ जाता है, शॉर्ट सा मैं कर रही हूँ। फिर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी इसका हमें जो है वो जहन में रखना चाहिए है। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में जो है वो क्या है कि जाहिर है कि हमको बीइंग मुस्लिम भी और जो भी हमारा रिलीजन है उसके वो भी हमें इसी तरफ ले जाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, कि जो अल्लाह ताला मर्ज देता है तो उसकी कोई ना कोई इलाज भी है। फिर हम हीलिंग बाय सूरह रहमान भी बहुत सारे बच्चों पे बहुत ही इफेक्टिव है, दुआ और जिक्र है। फिर ब्लैक सीड्स है ना, जो कलौंजी, उससे किस किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑलिव ऑयल से जो है वो किस किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमको जो है वो जहन में रखनी चाहिए ना। अभी इंटीग्रेटेड अप्रोच में क्या क्या है कि फिजिकल हेल्थ, यू कैन सी द न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, आई एम जस्ट टेलिंग द हेडलाइंस, एंड प्रिवेंटिव केयर, रेगुलर चेकअप्स, फिर एक्सेस टू द काउंसलिंग सर्विसेज, फिर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, सोशल वेल बीइंग में फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, सोशल स्किल्स, काउंसलिंग है ना, बुलिंग प्रिवेंशन, ये सारी चीजें हैं। और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सेफ लिविंग कंडीशंस, एक्सेस टू एजुकेशन, कम्युनिटी रिसोर्सेज, हेल्थ इक्विटी, क्योंकि हर बच्चा चाहे गोरा है, काला है, गरीब का है, अमीर का है, सब इक्वल है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको जहन में रखते हुए हमारा ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर भी काम कर रहा है, और उसमें हमारा चैरिटी वर्क भी है और सदफ नाजिया का भी है। और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, पेरेंटिंग, सही तरह की पेरेंटिंग, क्योंकि बहुत से बच्चे जब थेरेपीज के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, और जब वो घर आते हैं तो फिर वो वैसे के वैसे, क्योंकि घर में उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। तो कन्वेंशनल मेडिसिन इज अ मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर सिस्टम, जिनको हम कहते हैं डॉक्टर्स है ना, और प्रोफेशन दैट ट्रीट सिम्टम्स एंड डिजीज। लेकिन हम ये सिम्टम और डिजीज तो कह रहे हैं, सिम्टम को पहले स्टेप में जो है वो डील करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद उसके रूट कॉज पे जाना। तो यूजिंग साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड मेथड्स, जो भी चीज़ें हैं ये एविडेंस बेस्ड हैं, इनकी सारी स्टडीज़ मौजूद हैं, और फिर इसको यूज़ करना डिफरेंट किस्म की मेडिसिन, सर्जरी, रेडिएशन के ज़रिए हैं, और इसको वेस्टर्न एलोपैथिक भी कहते हैं, जैसे कि एक होम्योपैथिक है। फिर इसके अलावा इसमें जो है ना वो इट फोकसेस हेविली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक एंड टारगेटेड डिजीज मैनेजमेंट है। तो इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, जैसे अगर फीवर है तो उसमें कौन कौन सी, मलेरिया है, टाइफाइड है, या कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई TB है, तो ये बहुत दूर तक हमको सोचना पड़ता है। और इट इज़ पर्टिकुलरली हेल्पफुल इन एक्यूट केयर, इमरजेंसीज, इन्फेक्शियस डिजीज और सर्जरीज है ना। और कोर प्रिंसिपल इसका क्या है कि दिस इज द एविडेंस बेस्ड सिम्टम एंड डिजीज फोकस एंड स्पेशलाइजेशन फिर इसमें होता है ना, जैसे कि ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट,
और फिर मजीद इसको जब हम करते हैं तो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट, ना पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट। तो ये सारी इसमें जो है, जो बिल्कुल इसके कोर प्रिंसिपल्स हैं। और इसको ट्रीटमेंट मेथड मैंने पहले भी बताया कि मेडिसिन होती हैं, लेकिन मेडिसिन तो होती हैं, लेकिन जिनको हम सप्लीमेंट कहते हैं उसको आप मेडिसिन कहेंगे या सप्लीमेंट कहेंगे, है ना? क्योंकि जाहिर है कि जब आयरन की डेफिशिएंसी है और हम दे रहे हैं, है ना, तो जाहिर है कि वो मेडिसिन भी हो जाती है। सप्लीमेंट तो वो कि जब बिल्कुल नॉर्मल है आयरन और फिर भी आप दे रहे हैं, है ना? इसी तरह B12 कम है तो हम उसको इंजेक्टेबल भी दे सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं। फोलेट, विटामिन डी कितना ज़्यादा लो आजकल आ रहा है, तो उसकी डेफिशिएंसी पूरी करना है। तो ये तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, दिस इज नॉट द सप्लीमेंट, है ना? फिर सर्जिकल इंटरवेंशन और एडवांस इमेजिंग डायग्नोस्टिक्स ना। अब मैं थोड़ा सा जल्दी करती हूँ, मेरे पास कितना टाइम है। फंक्शनल मेडिसिन, अब हम फंक्शनल मेडिसिन पे बिल्कुल जो है रूट मैं बात करूंगी, बाकी तो सदफ नाजिया हमारे साथ हैं, वो बात करेंगी। इट इज एन ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर अप्रोच है, जो फाइंडिंग द रूट कॉज पे ये लोग काम करते हैं, और ऑफ क्रॉनिक डिजीज बाय एग्जामिनिंग लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स, एनवायरमेंट। हम लोग भी इस पे करते हैं, लेकिन ये और डेप्थ में करते हैं। एंड इट व्यूज द बॉडी एज एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम रादर देन ट्रीटिंग आइसोलेटेड सिम्टम्स। और इसमें तीन चीजें आपको याद रखें। एक तो एंटीसीडेंट है ना? एंटीसीडेंट जो हम जो मेडिकल डॉक्टर्स हम कहते हैं पास्ट हिस्ट्री क्या है, पहले से क्या क्या चीजें होती हैं और उसका क्या रूट कॉज है, क्या उसका एनवायरनमेंट है। फिर उसके बाद उसको क्या चीज ने ट्रिगर किया कि वो बीमारी सामने आई, और उसके बाद क्या चीजें चल रही हैं जो मीडिएटर कहलाती हैं। ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल्ड है ना? इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है कि रूट कॉज फोकस करते हैं हम, पेशेंट सेंटर्ड केयर होती है, हॉलिस्टिक टूल्स यूज होते हैं, और क्रिटिसिज्म, इस पे बहुत सारा डिबेट है आपस में। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बोल रहे होते हैं, लेकिन हमको एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं बोलना है, क्योंकि इसके अगेंस्ट क्या चीज़ है कि एड्रेसिंग ओवरऑल वेलनेस इज पॉजिटिव, बट सम फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिस इज वेरी एक्सपेंसिव। लोग कहते हैं कि कुछ अनप्रूवन टेस्ट हैं, हम नहीं कह रहे हैं। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज लैकिंग rigorous साइंटिफिक बैकिंग। तो अब कुछ और स्टडीज आ रही हैं जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसको भी हम यूज कर सकते हैं। और लोग कर रहे हैं, उनको रिजल्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि सदफ नाजिया बताएंगे ना। तो इसको हम अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि कन्वेंशनल मेडिसिन यूजेस स्टैंडर्ड साइंस बैक्ड प्रैक्टिसेस, है ना? और इसके अलावा जो दूसरी हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, वो भी इसकी हेल्प कर रही हैं। हम लोग भी होम्योपैथी की बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। आई माई सेल्फ डिड एक्यूपंक्चर, एक्यूपंक्चर मैंने किया था पोस्ट पोलियो पैरालिसिस में, बट आई कुडंट गेट एनी रिजल्ट। फिर कुछ हर्बल रेमेडीज हैं जो लोग यूज़ करते हैं। तो ये कन्वेंशनल मेडिसिन वर्सेस फंक्शनल मेडिसिन, इस पे सदफ नाजिया मजीद और तफसील से बात करेंगी। तो हमें क्या करना है कि ब्रिजिंग कन्वेंशनल एंड फंक्शनल मेडिसिन, है ना? ब्रिजिंग, डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग, है ना? जो डिजीज है उसको तो करना ही है। फिर फंक्शनल मेडिसिन अडॉप्ट अ सिस्टम ओरिएंटेड अप्रोच, उसको भी हमको लेके चलना है। तो इंटीग्रेटेड मॉडल इज प्रोपोज्ड कंबाइनिंग स्टैंडर्डाइज्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। किसी को इमरजेंसी होगी, किसी को फिट्स आए होंगे, है ना? बच्चा ब्रेथलेस है तो आप कहाँ लेके जाएंगे, है ना? आपको सोचना है ना? तो इसमें फिर जो है विद पर्सनलाइज्ड जो है इंटरवेंशन, न्यूट्रिशन, स्लीप, हाइजीन, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये सारी चीजें, तो इनको लेके हमको चलना है ना, कि मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये देखिए, द आर्किटेक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड केयर ये होना चाहिए कि हार्मोनाइजिंग कन्वेंशनल एंड फंक्शनल मेडिसिन। तो कन्वेंशनल मेडिसिन प्लस फंक्शनल मेडिसिन जो है वो क्या बनाएगा, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट केयर या इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये रिप्लेसमेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट रिप्लेसमेंट प्रोफेशन नहीं है, बल्कि हम लोगों को मिलके हम काम करेंगे तभी हम ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे ना। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं जैसे टू लेंसेज वन पेशेंट, है ना? तो प्राइमरी ओरिएंटेशन क्या है, क्लिनिकल फ्रेमवर्क की हमने बात की, टिपिकल कंसल्टेशन, डायग्नोस्टिक्स, ट्रीटमेंट, एविडेंस बेस्ड, और हर एक की कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ लिमिटेशन है ना? ये हमको बहुत ही डिटेल में हम जहन में रखना चाहिए। और बाद में भी हम इस पे प्रोग्राम करते रहेंगे, और हम फिर केस डिस्कस भी करेंगे, है ना, मिलके।
कि कोई एक केस ले लेंगे और उसमें जो हमने कितनी कन्वेंशनल मेडिसिन यूज़ की और कितनी फंक्शनल मेडिसिन यूज़ की, और डिसिप्लिन, वेयर डिसिप्लिन ओवरलैप्स, बहुत सारी चीज़ें हमारी ओवरलैप हो रही हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए। ये आई थिंक सदफ नाजिया बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो गट ब्रेन एक्सिस के ऊपर बात करेंगी, और मज़ीद जो भी हमारे माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन और ग्लूटाथियोन वगैरह पे मिथाइलेशन कैसे होता है, ये जो पैटर्न है वो यूज़ कर रहे हैं हमारे कराची मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अंडर द ऑटिज्म विदाउट बॉर्डर। इसमें यू कैन सी, देखिए कन्वेंशनल मेडिसिन में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। कोई अगर नहीं करता है तो उसकी गलती है। डिटेल हिस्ट्री इसमें होती है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बल्कि मदर फादर की एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। फिर न्यूक्लियर फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली है, क्या है, कौन सी इनहेरिटेड डिजीज़ है, फिर बर्थ हिस्ट्री डिटेल में कि नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है, एट बर्थ कौन कौन से टेस्ट हुए, थायराइड की स्क्रीनिंग हुई कि नहीं, है ना, उस वक्त तो फिट्स नहीं पड़े थे, उसको जॉन्डिस कितने अरसे तक रहा, फिर उसकी न्यूट्रिशन और हाइजीन, है ना, हाइजीन से ही गट इतना ख़राब होता है पाकिस्तान में, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं है ना, तो उसके पूरे माइलस्टोन्स डिटेल में, जंक फूड कितना है, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उसको पानी कितना मिलता है, ये सारी चीज़ें, फाइबर डाइट कितनी है उसकी, फिर स्क्रीनिंग हम करते हैं, फिर डिटेल असेसमेंट होता है, हियरिंग का टेस्ट है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, इम्यूनिटी उस बच्चे की कितनी है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, स्लीप कैसी है, एलर्जी, स्क्रीन टाइम, और ये सारी चीज़ इतनी ज़रूरी हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन 2 इयर्स पे बच्चे का ब्रेन हाफ ऑफ द एडल्ट ब्रेन होता है, और 3 इयर्स पे 90% बन जाता है ना। और उसके बाद ये रूटीन टेस्ट की आप लिस्ट देख सकते हैं कि ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी हैव टू डू। तो ये बिल्कुल ब्रीफली मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन। और ये हमारी कुछ लिंक्स हैं। Thank you so much, Dr. Ezra. Now we have Ms. Sadaf Nazia. Over to you, Ms. Sadaf Nazia. Can you hear हेलो me, Ms. यस यस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। वालेकुम जैसे अस्सलाम। कि इन्होंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करवा दिया मेरा, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है मजीद करवा देती हूँ। डॉक्टर अज़रा, आपका भी थैंक यू सो मच, और आप सबके आने का भी शुक्रिया, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरह के जो ट्रेनिंग सेशन है वो होने चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा माएँ जो है वो बिल्कुल उनकी जो एजुकेशन है वो है ही नहीं। तो हम कोशिश करेंगे कि उसको उर्दू में ही रखें, क्योंकि काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको इंग्लिश का वर्ड भी समझ नहीं आता। तो थोड़ा सा मैं लिटिल बिट अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ ताकि हम उसको स्टार्ट करें। Sure. Let me go. Sorry, this okay. Okay, I have started. Can you see now? आपको नजर आ रहा है? यस। हाँ जी। तो सबसे पहले आज चूंकि मेरा टॉपिक है फंक्शनल मेडिसिन का, जिसकी मैं प्रैक्टिशनर हूँ, और इस वक्त जो है फंक्शनल मेडिसिन जो है और कन्वेंशनल मेडिसिन के बारे में आप लोग काफी कंफ्यूज होते हैं। आप लोग पूछते रहते हैं कि क्या डिफरेंस है, क्या मतलब कौन सी बेहतर है। हर ट्रीटमेंट अपनी जगह पे बेहतर ही होता है, लेकिन हमने एज ए प्रैक्टिशनर या एज ए पेरेंट डिसाइड खुद से करना होता है। तो ये आज का जो सेशन है आपको आइडिया देगा दोनों मेडिसिन के बारे में, कि दोनों अपनी अपनी जगह पे किस तरह से डील कर रही है ऑटिज्म को। सबसे पहले अगर आप मेरी पहली स्लाइड्स को देखें तो फंक्शनल मेडिसिन है, जो कि एक रूट कॉज अप्रोच होती है, यानी कि आपका बच्चा जैसे बीमार है तो आप फौरन से उसको लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो मोस्टली को एंटीबायोटिक्स और पैरासिटामोल या कैल्पोल वगैरह दे देते हैं डॉक्टर्स, या जो भी जहां भी आप लेके जाते हैं। या कोई भी ऐसी डिजीज है, स्पेशली न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो उसको जो है सिम्टम बेस्ड जो है ट्रीट कर दिया जाता है। लेकिन जो फंक्शनल मेडिसिन है वहां पे हम सिर्फ सिम्टम्स को नहीं देख रहे होते, हम इंटरनल एक इंडिविजुअल, एक चाइल्ड की जो होल बॉडी के सिस्टम है उन पे वर्क कर रहे होते हैं। यानी कि अगर आप मेरे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, किसी के पास भी फंक्शनल का ले रहे हैं, तो हमारी जो अप्रोच है उसमें जो फ्रेमवर्क है एक बच्चे का पीडियाट्री का, तो उसमें हम जो है सारे सिम्टम्स के अलावा जो है सिस्टम को भी देखेंगे कि बच्चे का गट कहाँ पे इन्वॉल्व है, इम्यून फंक्शन कैसा है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे जो है वो जकड़ा हुआ है, कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जो इस बच्चे के साथ जो है या किसी भी इंडिविजुअल के साथ इन्वॉल्व है।
इसके आगे अगर, और दूसरा चाइल्डहुड ब्रेन हेल्थ जो है, जिसकी मैं फाउंडर हूँ, ये एक फंक्शनल मेडिसिन पीडियाट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है और पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हम रजिस्टर्ड हैं एंड वी गॉट द लाइसेंस, वी आर verified and we are how to say, we have a license for everything, like we have a legal rights as well. And right now CBH from this platform जिसका अभी मैं जिक्र कर रही हूँ, उसके थ्रू 11,000 फैमिलीज को जो है मैंने सपोर्ट किया और माशाल्लाह से 100 कंट्रीज, जिसमें यूरोप, यूएसए, यूके, पाकिस्तान, इंडिया और सारे जो है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो है 50 प्रोग्राम्स से मुराद ये है कि 50 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे मैंने ऑलरेडी सीबीएच के थ्रू कम्युनिटी को सपोर्ट किया है। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा शॉर्टर ही दूंगी ताकि आप ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकें। उसके बाद फंक्शनल मेडिसिन, जैसे कि पहले हमने स्टार्ट किया कि हम जब एक बच्चा मेरे पास आया तो आप देखेंगे नंबर 1 पे लिखा हुआ है सिम्टम्स। चाइल्ड जो है अपना, हमारा जो ऑटिस्टिक बच्चा है क्लिनिक पे आया है एक सिम्टम के साथ, हेड मैगिंग के साथ फॉर एग्जांपल, और ऑटिस्टिक भी है और स्पीच डिले के साथ भी है, फॉर एग्जांपल ये केस है मेरे पास। तो माँ बाप का कंसर्न सिर्फ हेड बैंगिंग और स्पीच है, लेकिन एज ए प्रैक्टिशनर मेरे लिए ये सिम्टम जो है इनफ नहीं है। मैंने उसके सिम्टम्स को देख लिया, लेकिन सेकंड मेरा जो गोल होगा फैमिली के लिए वो रूट कॉज होगा कि बच्चा क्यों हेड बैंगिंग कर रहा है, क्यों स्पीच नहीं आ रही, क्यों बोल नहीं पा रहा। तो मेरा जो सेकंड लुक होगा वो गट, ब्रेन और इम्यून एनवायरमेंटल होगा, यानी कि बच्चे का मैदा, इम्यून फंक्शन, अल्लाह ताला की तरफ से जो कुव्वत मुदाफियत का सिस्टम है वो कहाँ पे ओवर एक्टिव है, जो कि हमारे ऑटिस्टिक बच्चों में मोस्टली ओवर एक्टिव होता है। इसके अलावा बच्चे का माहौल, यानी कि वो कितना इन्वॉल्व है बच्चे के ऑटिज्म के सिम्टम्स में। ठीक है। नंबर 3 पे ऑब्वियसली बगैर टेस्टिंग के, बगैर किसी ऐसी चीज के, इंटरनल एवरीथिंग, तो फंक्शनल टेस्टिंग भी हैं जो कि ऑफर किए जाते हैं फैमिलीज को कि आप जाएं वो करवाएं, जैसे ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट है, फ्रैट टेस्ट है, देयर आर सो मेनी टेस्टिंग, मेटाबॉलिक टेस्ट, जो कि हमें जो है पर्सनलाइज ट्रीटमेंट के लिए करवाने पड़ते हैं। और बगैर टेस्टिंग के आई वुड से कि बहुत हार्ड होता है समटाइम पेरेंट्स को हाउ टू से डील करना, बच्चे को सपोर्ट करना। लेकिन मैं समझूंगी कि फंक्शनल टेस्टिंग वाले जो फैमिलीज होती हैं उनको हम शॉर्टर वे से जल्द जो है उनका जो जर्नी है वो कंप्लीट हो जाता है एज कम्पेयर टू दूसरी। तो ये एक ऑनेस्ट है, आई डोंट पुटिंग प्रेशर ऑन द पेरेंट्स कि वो टेस्टिंग करवाएं, बट दिस इज माय ऑनेस्ट हाउ टू से रिव्यू अबाउट द टेस्टिंग। टेस्टिंग जो है, जैसे मेरे लोकल जो बच्चे हैं वो सबसे पहले टेस्टिंग की तरफ जाते हैं और फिर फर्दर उनके मैनेजमेंट जो है वो होती है। और नंबर 4 पे न्यूट्रिशन। आप सभी को मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि मैंने न्यूट्रिशन में 3 दफा स्टडी की है। उसकी वजह ये थी क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी मेरी जिम्मेदारी दुनिया पूरी में है उसके लिए मुझे ये सारी स्टडी तो है ही, लेकिन न्यूट्रिशन जो है एक ऐसा कंपोनेंट है जो हर फैमिली स्ट्रगल में है। हर फैमिली जो है अपने बच्चे को प्रोसेस फूड दे रही है, वो फूड दे रही है जो कि बिल्कुल ऑटिस्टिक बच्चे के लिए सही नहीं है। सो आई वेंट 3 times विद मल्टीपल स्टडीज टू हैव डीपर नॉलेज कि मैं फैमिलीज को जो है दे सकूं। तो न्यूट्रिशन जो है फंक्शनल मेडिसिन की अप्रोच में नंबर 4 पे हमारा मेजर गोल है। और लाइफस्टाइल चेंजिंग, आप में से जितने पेरेंट्स मुझे जानते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो लाइफस्टाइल जो एजुकेशन है मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है जो कि निग्लेक्टेड है। आप महंगे से महंगा इलाज करवा रहे होते हैं लेकिन आपको लाइफस्टाइल चेंजिंग और न्यूट्रिशन को बिल्कुल नहीं उस तरह से टच किया जाता। मतलब अपनी जगह पे सभी अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जब हम फंक्शनल मेडिसिन की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन प्लस केमिकल फ्री लाइफस्टाइल होना चाहिए बच्चे का, नॉन टॉक्सिक बर्तन होने चाहिए, और जैसे घर के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं, माइक्रोवेव्स, ओवन, वाईफाई रूटर, ये सारी मैग्नेटिक एनर्जी है, यू नो। तो हम इस चीज की मैं पेरेंट्स को एजुकेशन देती हूँ कि आप न्यूट्रिशन एडजस्ट करें, घर का पेंट्री दुरुस्त करें, प्रोसेस फूड बंद करें, शुगरी, स्टार्ची, कार्ब्स वाले फूड, क्योंकि ये जितना फूड है आपके बच्चे का गट, ब्रेन एक्सिस और इम्यून फंक्शन तीनों को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है। और लाइफस्टाइल क्यों मैंने वर्ड यूज किया, मेरे पास एक बच्चा है यहाँ से बिल्कुल मेरे करीब ही रहते हैं, वो बच्चा जो है हेड बैंगिंग के साथ साथ वो टैप बहुत ज्यादा करता था सर को, और शेक करता था सर को बहुत ज्यादा। आई वॉज वर्किंग ऑन हिम एंड आई आस्क्ड द पेरेंट, कैन आई गो
to see where the child live. Can you send me a video? And when I took the video, I found lots of devices in the living room, for example. और वो डिवाइसेस ऐसी थी जो मसलसल यूज हो रही थी. तो माँ ने एक्सेप्ट किया, उनकी मदर ने, कि yes, you're right, we are using lot of microwaves. Wi-Fi router is next to the child where he has a chair and sitting and rocking all the time. तो वाईफाई रूटर्स और घर में एलईडीज का इस्तेमाल, स्पेशली ड्यूरिंग द स्लीप. तो जब मैंने उसका बायोमेट्रिक टेस्ट करवाया इटली से, तो उसमें कंफर्म हो गया कि ये जो है हाउ टू से मैग्नेटिक एनर्जी जो बच्चे के ब्रेन पे अफेक्ट कर रही है. तो ये टेस्ट होता है, इसके लिए हम उसको कंफर्म कर सकते हैं. तो यानी कि ये मैंने टेस्टिंग प्लस अपनी ऑब्जर्वेशन से वेरीफाइड किया हुआ है कि न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड. इट्स जस्ट नॉट कि मैं उसको सप्लीमेंट्स दे दूं, या कोई भी हमारे प्रैक्टिशनर या कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल एवरीवन. लेकिन न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल इज द मेन थिंग, जो कि मेरी पहली कंसल्टेशन या पहला जो चैप्टर हम ओपन करते हैं या केस ओपन करते हैं, तो उसमें बच्चे को, पेरेंट्स को दिया जाता है. नंबर 5 जो है वो रिकवरी है. तो रिकवरी की अगर बात की जाए किसी भी केस की, तो ये एक जिसे कह लें कि बहुत पेरेंट्स के लिए बड़ी शॉक वाली बात होती है. हाउ कम के बच्चा रिकवर हो गया, आई वोंट बिलीव, यू नो. तो रिकवरी जो है, यस इज पॉसिबल. अगर मैंने शुरू से जो आपको पॉइंट 1, 2, 3, 4 बताया, अगर आप उस तरह से काम कर रहे होते हैं तो रिकवरी आती है. कहाँ पे रिकवरी आती है? बच्चे के सिम्टम्स रिवर्स हो जाते हैं, बच्चा सेटल डाउन हो जाता है, काल्मर हो जाता है, स्पीच आना शुरू हो जाती है, प्लस बच्चा सोशली इंटरेक्ट करता है. क्योंकि ऑटिज्म का जब सिम्टम पहला अपीयर होता है तो बच्चा सोशली उस तरह से नहीं होता. ठीक है. सबसे छोटा बच्चा अगर आप 12 महीने का उठाएंगे तो उसका जो सिम्टम, आजकल अर्ली इंटरवेंशन पे मैं काम कर रही होती हूँ, तो 11-12 महीने का बच्चा, पेरेंट्स बताते हैं कि आई कांटेक्ट नहीं है और वो किसी एक जगह पे फिक्स है, उसको कोई पता नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है. तो सोशल जो डिस्कनेक्शन है बच्चे का ईयर 1 के बाद, रिकवरी उस वक्त आती है जब हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं. ठीक है. तो बच्चा आपका इंटरेक्ट करता है स्कूल में बाकी लोगों के साथ, और पेरेंट्स बताते हैं कि नाउ आई एम वेरी हैप्पी, आई कैन लीव हिम ऑन हिज ओन इवन एंड आई डोंट नीड टू वॉच हिम ऑल द टाइम. तो ये नंबर 5 तक जो जाना है, नंबर 4, 3, 2 को हमने बहुत डीपर वर्क करना होता है. और नंबर 6 है, आपका सवाल होता है क्या ये जो हमने गेन किया है, ये हाउ टू से, ये वापस तो नहीं चला जाएगा, बच्चा रिवर्स तो नहीं हो जाएगा, हमने ठीक कर लिया, मेडिसिन भी दी, टेस्टिंग भी कराया, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट. ये लॉन्ग टर्म हेल्थ है, लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स हैं. गट को फिक्स करना, इम्यून फंक्शन को स्टेबलाइज करना, गट ब्रेन एक्सिस की इन्फ्लेमेशन को खत्म करके माइटोकॉन्ड्रिया को सपोर्ट करना, इट्स नॉट अ जोक. इसमें मंथ्स लगते हैं, वीक्स लगते हैं, डे एंड नाइट की मेहनत होती है. तो जब हम इसको फिक्स कर लेते हैं और स्पीच स्पेशली हमारी और सोशल इंटरेक्शन बच्चे की आ जाती है, तो वहां पे ये लॉन्ग टर्म वेलनेस है. इसलिए फंक्शनल मेडिसिन को बहुत सेफर कंसीडर किया जाता है. दूसरी, ये पौधों वाली दवाई होती है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, नॉन टॉक्सिक है. क्योंकि हमारा गोल जो होता है, मेरा एज ए पर्सनल प्रैक्टिशनर जो गोल होता है, बच्चे को बिल्कुल केमिकल फ्री लाइफस्टाइल की तरफ लेके आना. और दूसरा मेरा ये गोल होता है कि ये बच्चे के लिए जो भी मैं वर्क करूँ लॉन्ग टर्म हो. थर्डली, इसमें न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल जो है, इसके बगैर हाउ टू से कोई भी वर्क उस तरह से नहीं हो सकता. और अभी मुझे क्वेरीज ऑलरेडी आ भी चुकी हैं कि क्यों न्यूट्रिशन जरूरी है. नीचे कमेंट सेक्शन में पेरेंट्स कह रहे हैं, अभी हम आपको उसका भी एक्सप्लेन कर देंगे कि बगैर टेस्टिंग के भी, या बगैर अगर बच्चे को ग्लूटेन या किसी चीज से एलर्जी नहीं है, तो फिर क्यों उसने न्यूट्रिशन चेंज करनी है? भाई आपके बच्चे ने फिर भी करना है, सारा कुछ फॉलो करना है. बिकॉज आपके बच्चे का इम्यून फंक्शन मेरी तरह या आपकी तरह का नहीं है. आपका बच्चा जो है, बगैर टेस्टिंग के हम देख सकते हैं कि उसका इम्यून फंक्शन कितना ओवर एक्टिव है, उसकी बॉडी में कितनी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है. आपको फिर भी ये सारी चीजें करनी है. और कुछ ऐसे पेरेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मैं एलर्जी का टेस्ट करवा लूं, ग्लूटेन का, डेयरी का, मेरे बच्चे को अगर नहीं आएगी तो फिर तो डाइट नहीं फॉलो करनी पड़ेगी. यही एजुकेशन है पेरेंट्स की कि आपको फिर भी फॉलो करनी है कपल ऑफ मंथ्स अंटिल कि आप नंबर 6 तक पहुंचे. आज इस चीज का स्क्रीनशॉट सारी मदर्स ले लें. नंबर 1 से नंबर 6 तक जाने के लिए कम से कम 8 महीने लगते हैं. मोस्टली जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनका ड्यूरेशन 6 से 8 महीने का जो है, अगर वो 1-to-1 पे काम कर रहे हैं तो 8 महीने में हम नंबर 6 पे पहुंच जाते हैं माशाल्लाह से. ठीक है. आगे मैं थोड़ा सा करती हूँ इसको. अब अगर कंपेयर करेंगे इसको कन्वेंशनल मेडिसिन के साथ, तो ऑब्वियसली हर अप्रोच अपनी जगह पे सही होती है, लेकिन हमने जो है हाउ टू से ऑलवेज वी स्पीक अबाउट अदर्स नाइसली. लाइक वो अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, जो है मेडिकल के डॉक्टर्स, हम अपनी जगह पे हैं. लेकिन अगर फंक्शनल मेडिसिन को फिर भी कंपेयर किया जाए
तो ये एक इंडिविजुअल बेस्ड ट्रीटमेंट है। लाइक आपके बच्चे का जो है उसकी हाउ टू से उसकी ओवरऑल हेल्थ का ये प्लान होता है। जस्ट उसको एक सिम्टम है, उसकी पूरी बॉडी को जो है इसमें देख देख के उसका पर्सनलाइज जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सेट की जाती हैं, और लॉन्ग टर्म जो है उसकी हेल्थ के ऊपर वर्क किया जाता है। और इसका जो फंक्शनल मेडिसिन है, जैसे मैंने पहली स्लाइड में एक्सप्लेन किया आपको कि हम जो है पूरे बॉडी के सिस्टम्स को लेकर चल रहे होते हैं, न्यूट्रिशन, गट, स्लीप एंड लाइफस्टाइल। ये चारों पांचों कंपोनेंट अगर मिलते हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शनल मेडिसिन का जो फ्रेमवर्क है वो अच्छे तरीके से डिलीवर हो रहा है और काम कर रहा है। ठीक है, बाकी दूसरी डॉक्टर हजरा ने एक्सप्लेन किया हुआ, मैं आगे जाती हूँ। अब करते हैं बात फंक्शनल मेडिसिन और ऑटिज्म। आपका डेली के इतने क्वेश्चंस और क्वेरीज आती हैं कि क्यों जी ऑटिस्टिक बच्चों को फंक्शनल मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या वजह है, क्यों आप इतनी मतलब सारे कहते हैं ये वो। तो देखें, ये जो एक अप्रोच है या एक ट्रीटमेंट है ना, ये कोई वो नहीं है। आप पिक्चर की दूसरी तरफ देखें, लिखा हुआ है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में सारी तरफ देखें, गट हेल्थ, न्यूट्रिशन, स्लीप, इम्यून, इन्फ्लेमेशन, इन्वायरमेंटल, माइक्रोबायोम, डिटॉक्सिफिकेशन, इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें टॉक्सिन्स भी है, टॉक्सिक बर्डन भी है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी है। बच्चे का पूरा बॉडी का सिस्टम जो है वो जकड़ा हुआ है, और जब आपने इसको रिवर्स करना है, स्टेबलाइज करना है, तो ऑब्वियसली आपने वही ट्रीटमेंट इस पे फॉलो करना है जिसमें केमिकल ना हो, कि जिसमें कोई भी जिसे कह लें कि उस मेडिसिन के अंदर इवन ग्लूटेन ना हो, उसके अंदर केमिकल ना हो। तो वो कोई भी इलाज हो सकता है, लेकिन अगर हम सारे इलाज को एक साइड पे रखें तो फंक्शनल मेडिसिन की बात करें तो फंक्शनल मेडिसिन यस, इसके अंदर हम ये जितने सारे कंपोनेंट हैं, न्यूट्रिशन, स्लीप, इम्यून, एनवायरमेंटल, माइक्रोबायोम, इन सभी को फिक्स कर सकते हैं आप। और आई कैन गिव यू गारंटी बिकॉज आई हैव 11,000 फैमिलीज। और जब काम किया जाता है तो विद इन 3 to 4 months पेरेंट्स एंड स्कूल मीटिंग में अटेंड करती हूँ, वो खुद बताते हैं कि नाउ चाइल्ड इज नॉट डूइंग पू ऑल द टाइम। खाना खाने के बाद पेशाब नहीं आ रहा, मतलब उसका लीकी गट था शायद, या लेट से वो ठीक हो गया। और बच्चा जो है पहले पिकी ईटर था, अब न्यूट्रिशन एडजस्टेड है। फिर वो कहते हैं कि पेरेंट्स स्लीप जो है अब बहुत अच्छी है। और इम्यून सिस्टम किस तरह से मुझे पता चलता है कि फिक्स है, या फंक्शनल मेडिसिन किस तरह इम्यून सिस्टम एक ऑटिस्टिक बच्चे का स्टेबलाइज कर सकती है। जब हम टेस्टिंग की तरफ जाते हैं और बच्चा जो है उसकी सिकनेस कम होना शुरू हो जाती है, उसकी कुव्वत मदाफियत जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही होती है, बाकी इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली कम होती है। तो ये सारी चीजें बेहतर होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी वही जो मैंने आपको बताए कि घर के अंदर माहौल जो है वो नॉन टॉक्सिक और केमिकल फ्री होगा। माइक्रोबायोम हमारा फर्स्ट प्रोटोकॉल है जिसको हम फिक्स करते हैं फंक्शनल मेडिसिन से, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चों के जो Sorry, माइक्रो Sadaf, sorry to interrupt you. We have very less time तो ताकि हम questions भी ले सकें. Try to wind up as एंड एवरी आई मीन ये जितनी आप सर्कल में देख रही है सारी चीजों को फंक्शनल मेडिसिन वेरी वेल सपोर्ट करता है। और द नेक्स्ट वन इज गट ब्रेन एक्सिस, जो कि हमारा एक मेजर कंसर्न है, जिसमें दिमाग, वेगस नर्व और माइक्रोबायोम और प्लस जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है इन्वॉल्व है। तो इन सारी चीजों को हम अगर ये सारी चीजें फंक्शन नहीं कर रही तो हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सिस जो है वो जिसे कह लें डिस्टर्ब है, इन्फ्लेम्ड है, उस पर हम वर्क करते हैं। फंक्शनल मेडिसिन के जरिए हम गट ब्रेन एक्सिस को रिस्टोर करते हैं और उसका वो जो ब्रेन के साथ लिंक है वो दोबारा से बहाल करते हैं, जिससे बच्चे के जो है ओवरऑल सिम्टम बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम सिम्टम टू रूट कॉज, same as I explained before, assessment, we go for functional testing, personalized plan है, nutrition adjustment है, monitor है और long term health है। और बेनिफिट्स क्या हैं फंक्शनल मेडिसिन के? ऑब्वियसली आपके बच्चे का मुकम्मल बॉडी का सिस्टम जो है वो बेहतर होता है। उसके अलावा जो है आपका जो हर चीज होती है वो बच्चे के एज, वेट और प्रोटोकॉल जो होती हैं उसकी पर्सनलाइज होती हैं। इसके अलावा अब हमारा फोकस जो होता है वो प्रिवेंशन है कि मजीद कोई भी बच्चे को जो है क्रॉनिक डिजीज जो है उसको उसका जो रिस्क है वो रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा ये पूरी एक फैमिली जो है उसकी सेंटर केयर है। एंड द लास्ट and you can see the CBH how we are working globally माशाल्लाह से आप सबकी दुआओं से, और my all work goes to charity as well। और इसी की वजह से अल्लाह bless me a lot कि माशाल्लाह every जो है family we are supporting। And that's it I think, and that's our official links if somebody wants to see more about us. Thank you so much, thanks a lot, and I think we can take the queries.
Thank you so much, Miss Sadaf. Thank you so much. It was very beneficial for all of us. अब I would like कि अगर जो questions लेना चाहते हैं तो हम डॉक्टर इजरा questions ले लें आप. I think Dr. Farzana Saeed, who is among the board of directors of Autism Without Border, is here, और प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज ऑलवेज हेल्पिंग अस. तो हम थोड़े से उनके कमेंट्स ले लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट्स ना, ताकि ये कन्वेंशनल मेडिसिन और फंक्शनल मेडिसिन की ब्रिजिंग हम कैसे करें और किस तरह से आगे चलें. जी डॉक्टर फरजाना, अस्सलाम वालेकुम. Over to you. अस्सलाम वालेकुम. I think parents के questions important हैं. It was fantastic to hear Sadaf. She's new. Everybody knows me. I've been around to this place. मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, गुलाबी है यहाँ रहते हुए. मैं 40 साल प्लस हो गए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए. It was fantastic to hear Sadaf. जो कह रही हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं. हाँ, हमारे यहाँ अमेरिका में जो ये कह रही हैं ये सिर्फ हम ऑटिस्टिक बच्चों के लिए नहीं करते हैं, रेगुलर बच्चों के लिए भी करते हैं. हमारा कोई ब्लैक एंड वाइट लाइन नहीं है बिटवीन ऑटिस्टिक किड्स और रेगुलर बच्चों में. हम ये होलिस्टिक अप्रोच, आप फंक्शनल मेडिसिन कह लें, अल्टरनेटिव मेडिसिन कह लें, हम हर बच्चे को इसी तरह से वी अप्रोच देम एज एन एंटायर किड to see what's going on with the child. और डाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम 100% एग्री करते हैं कि यहाँ पर डाइट, न्यूट्रिशन, सब इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कुछ है इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है. लेकिन देर इज नो कुकी कट अप्रोच फॉर एनी चाइल्ड, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा हो, डेवलपमेंटली डिलेड बच्चा हो या रेगुलर बच्चा हो जो कि ग्रो कर रहा है. तो हम हमारे यहाँ बोथ अप्रोचेस गो टुगेदर. हर चीज साथ जाती है. हर बच्चा प्रोसेस फूड हो या जंक फूड हो नहीं काम करता. तो हर चीज हम साथ लेकर चलते हैं, देखते हैं कि क्या चीज है. जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि बच्चा सर तोड़ रहा है, माँ को तो वही प्रॉब्लम नजर आ रही है. तो हमने ये देखना है कि वो सर क्यों मार रहा है और वो क्यों नहीं बोल रहा है. तो हम सब कुछ ये सारी चीजें पूरी साथ ही करते हैं. और हमारे यहाँ भी, मैं तो 40 साल हो गए मुझे, दवाई तो मैं उस वक्त देती हूँ जब मेरी बिल्कुल जान निकल जाती है. और मुझे 40 साल से ज्यादा हो गए प्रैक्टिस करते हुए. और मैं तो ऑटिस्टिक क्या ADHD के बच्चे को भी मेरी जान निकल रही होती तो मैं दवाई देती हूँ. तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं, हम यही करते हैं. हमारी कोई वो नहीं है कि फंक्शनल बुरा है या ये जो कन्वेंशनल मेडिसिन अच्छा है. हम दोनों के साथ चलते हैं बराबर. इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. वी वर्क बोथ वेज. हमारे यहाँ देर इज नो ब्लैक एंड वाइट कि ये फंक्शनल मेडिसिन है और ये कन्वेंशनल मेडिसिन है. मैं तो दोनों प्रैक्टिस करती हूँ और 45 साल से दोनों कर रही हूँ. और अगर मेरा बच्चा जो है वो स्पेसिफिक डाइट से उसका इलाज हो रहा है, तो चाहे वो ग्लूटेन फ्री है या वो नॉन डेयरी है, अगर वो काम कर रही है तो वेल एंड गुड, आप वही उसको खाना दें. और अगर वो रेगुलर डाइट है मगर प्रोसेस फूड तो किसी सूरत में भी अच्छा नहीं है. मॉडरेशन वर्क्स गुड. सो दैट इज ऑल आई हैव टू से. Thank you, Dr. Farzana. The same is doing, I'm also doing the same. कि चाहे ऑटिस्टिक हो या ना हो, जब तक डिटेल हिस्ट्री नहीं हो, और मेडिसिन तो हम बहुत बाद में ऐड करते हैं. हाँ, ये कि जिसकी इमरजेंसी होती है उसको देना पड़ता है, जाहिर है. अब प्रोफेसर डॉक्टर आयशा महनाज हमारे साथ हैं. जी आयशा. जी, Assalamu alaikum everyone. Thank you, Azra, for always making me part of your team and inviting me in all such informative session. आप दोनों ने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में और बहुत ही कम अल्फाज में बहुत कुछ बता दिया. आपने भी और सदफ ने जो अप्रोच बताया है towards the management, individual management and tailoring according to the need of a person. बहुत कुछ हम लर्न कर रहे हैं इन वेबिनार में. और ये जो आप लोगों ने अवेयरनेस रेजिंग के हवाले से प्रोग्राम शुरू किया है, तो उसका एक फायदा हम पीडियाट्रिशियन को ये भी हुआ है कि अब लोग बहुत जल्दी अपने बच्चों को ले आते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना होता है
कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं, ये साइन होते हैं, तो फिर वो सवाल करते हैं कि ये बच्चे में ये है, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए। तो वो हमारे लिए भी आसानी होती है कि हम बस जल्दी फिर इनको रेफर कर देते हैं उस टीम के पास जो एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दे रही है इन बच्चों को, बिकॉज एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है। तो जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत है, वहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की भी जरूरत है। और यहाँ मैं एम्फेसिस दूंगी कि इस टीम का एक बहुत बड़ा हिस्सा, ये स्टेक होल्डर जो है वो पेरेंट्स हैं। तो कुछ जिम्मेदारी पेरेंट्स पे भी आती है, जैसे आपने कहा कि रूटीन चेकअप करवाते रहें, उसके डाइट के हवाले से एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पेशन रखें कि क्या डाइट प्रॉपर है क्या नहीं है। तो मे बी एक मिलजुल के ही हम इस जो भी स्पेक्ट्रम में जो बच्चे हैं उनका हम सही वक्त के ऊपर उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो आई थिंक वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार था, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर जो पेरेंट्स हैं, हमें उनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ताकि वो बेनिफिट कर सके इस तरह के वेबिनार्स में और सेमिनार्स में से। So thank you very much, Dr. Azra, once again, and inshallah, as a team, we will continue our struggle to bring more and more knowledge and updated information about it. मैं खुद बहुत कुछ नई चीजें सीखती हूँ about this gut microbia, और अभी जो dietary therapy आप लोग बताते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक continuing education का जरिया है. So thank you very much, Dr. Azra, and Sadaf and the whole team of Autism Without Borders. Thank you so much, Dr. Aisha. Thank you so much for sharing your insight. Now, can we take questions? Those who wants to ask question है, किसी को कोई भी सवाल है तो वो hand raise कर सकता है, यहाँ पे टाइप कर सकता है। किरण, कुछ लोगों ने क्वेश्चन डाले हैं, मेरे ख्याल है पहले वो भी ले लें आप। और जो रिलेटेड टू दिस टॉपिक, नॉट जनरल क्वेश्चन, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, किसी ने क्वेश्चन किया है कि मेरा बच्चा, आई थिंक इसने मूसा, ये शायद, कि मेरा बच्चा 2 साल का है और माइल्ड ऑटिस्टिक है, क्या इसको मेडिसिन की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ माइल्ड ऑटिस्टिक है और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है तो उसको मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर बच्चे को इंडिविजुअली देखने की ज़रूरत ज़रूर होती है, क्योंकि जब तक उसको देख के पूरी हिस्ट्री ना लो तो ये कहना मुश्किल होता है कि उसको सप्लीमेंट दें या मेडिसिन दें या किस टेस्ट की ज़रूरत है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके कंसर्न क्या है। ऑल्सो डॉक्टर एजर समवन आस्क्ड के इस सिलसिले में बच्चों के बहुत महंगे टेस्ट करवाते हैं, जैसे ओट्स हो गया, मिनरल में मेटल टेस्ट हो गया, हेयर टॉक्सिक, तो वो बहुत महंगे होते हैं, तो जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन वो क्या करें, क्या ये बहुत जरूरी है? इनका जो है ना, वैसे तो हम लोग इंडिविजुअली भी काफ़ी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट जो है, सदफ को भी पता है कि डायरेक्ट हम लोग कभी भी इतने महंगे टेस्ट नहीं लिखते और उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है ना। पहले तो बहुत हम उनको जो है रूटीन टेस्ट, और उसमें जो हमारा या सेटअप है उसमें हम डोनेशन और ज़कात और डिस्काउंट वो सारी चीज़ों से करते हैं ना। और जो हमारे पास आते हैं उनका मालूम भी है कि हम मैक्सिमम जितनी हेल्प कर सकते हैं उनकी करते हैं, क्योंकि रूटीन टेस्ट तो बहरहाल ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन डी डेफिशिएंसी हर एक में आती है, आयरन डेफिशिएंसी इज़ वेरी कॉमन है ना। और इसमें ज़ाहिर है कि फोकस रुचि आपका ही है। ख़राब होता है और आई कांटेक्ट भी ख़राब होता है ना। और तो वो डॉक्टर चीज़ें साहब, जो रूटीन हैं वो टेस्ट तो के हम विदाउट, करते हैं है ना। रूटीन टेस्ट लेकिन के जहाँ विदाउट तो एडवांस प्लान। होती है वो, क्योंकि हमारे अपने पाकिस्तान में वो टेस्ट नहीं होता, तो उसमें हम फिर डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन ऑल्टरनेटिव है, जो चीज़ है हमारे पास उसका बेस्ट यूज़ करना सीखें, है ना। जैसे सदफ ने बताया ना कि जाके देखा, मेरा एक बच्चा अस्थमा का था, उसका अस्थमा ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर उस वक्त मैं कतर हॉस्पिटल में थी और हमने किसी के ज़रिए वहाँ पता किया, और एक ज़माने में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल सोशल वर्कर होते थे, उनको हम घर भेजते थे। तो पता चला वो बच्चा मदरसे जाता है, वहाँ उसकी बहुत बीटिंग होती है, तो उसका अस्थमा कैसे सही होता है, इमोशनल अस्थमा भी होता है ना। तो इसी तरह हर चीज़ का, क्योंकि हम मेडिकल सोशल वर्कर के ज़रिए घर जाके पूरी सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ है क्या, है ना। और हम तो एडवाइस कर देंगे उनके पास है क्या, क्योंकि पाकिस्तान में ना पानी ना गैस और ये सारे प्रॉब्लम जो हैं, तो उसकी वजह से भी तो लोगों की लिमिटेशंस हैं, तो उस देख के फिर हमको चलना चाहिए ना। अच्छा, और किसी ने एक मेरे ख्याल और भी क्वेश्चन जो आए हैं वो जरा जो रिटर्न है वो जरा देख लें किरण पहले। आई थिंक किसी ने हाथ उम्मे उठाया हुआ तलहा ने उनको। किए हैं। मिस वो उम्मे तलहा कह रहे हैं कि कॉर्न्स और नट्स दे सकते हैं इन बच्चों को। क्या क्या, कौन से नट?
corns like corns or हर nuts. बच्चे के लिए जनरलाइज रूल नहीं होता। वो तो ये लोग इस पे फंक्शनल मेडिसिन वाले जब डील करते हैं और कोई खास सिम्टम होती है तो मकई उसमें का फिर वो कह रहे हैं ना, लिमिटेशन करते हैं कि ये दें और ये ना दें, अगर हाई ऑक्सीलेट है, लो ऑक्सीलेट है, क्या है ना। आई डोंट रिकमेंड मकई। कॉर्न कंप्लीटली कट ऑफ, स्टार्च है ना, इन्फ्लेमेशन है, जमेगी गट के अंदर जाके, जितनी वो जमेगी उतनी फूलेगी, और जितनी वो फूलेगी उतनी ब्लोटिंग होगी। सो कॉर्न फर्स्ट 6 मंथ नो, रेड जोन। ओके, आई थिंक बहुत ना जनरलाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं बोलूंगी कि आप लोग अगर हैंड रेज करके पर्टिकुलरली इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लें तो इट विल बेनिफिशियल, क्योंकि हर बच्चे की अलग ग्रोथ है, हर बच्चा डिफरेंट है, तो हर बच्चे की डाइटरी प्लान भी डिफरेंट होगा। हम जनरलाइज यहाँ पर नहीं बता सकते हैं कि इस बच्चे को ये दें या नहीं। आई थिंक सो इफ समवन यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, आप हैंड रेज कर लें ताकि हम आपको ले सकें। अच्छा, इसमें एक किसी का क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जंक फूड ले रही है ना, तो क्या जंक फूड ले रही है, दैट डेफिनेटली मतलब दिस इज अ ट्रिगर, क्योंकि वही गट ब्रेन एक्सेस, और अगर मदर के गट में ये होंगे प्रॉब्लम्स तो बच्चे के भी होंगे। ये लेटेस्ट काफी स्टडीज है इसमें, बहुत आई जस्ट स्टडीज है हैव कि उस वक्त से रिसेंटली, उसका वो फ्लोरा बनना शुरू हो जाएगा, गलत है ना। आई जस्ट वाज हैड अटेंड, इधर एक वर्कशॉप था, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ज्यादा मीठा खाने वाली माएं, प्रोसेस बर्गर शेयर चिप्स खाने वाली माओं के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें चांसेस हैं कि वो बच्चे जो है उनको प्रॉब्लम हो सकती है डेवलपमेंट में। तो ये एक है, मतलब इस चीज को थोड़ा, और आई हैव 2 पेरेंट्स, उनको प्रेगनेंसी में सिर्फ क्रेविंग स्वीट्स की थी और इंसुलिन रेजिस्टेंट, और वो थी मेडिसिन पे भी। तो मोस्टली हम, जब मैं पूछती हूँ पेरेंट्स से, बल्कि आप भी डॉक्टर जरा पूछते होंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कैसी थी, हमें वहीं से बिल्कुल पता चलना शुरू हो जाता है कि माँ किस तरह की थी, मतलब कहाँ पे माहौल था, खा क्या वो खा पी रही थी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रेगनेंसी में थोड़ी केयर करें सभी। सही। और दोज हु आर टेकिंग अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग मदर्स, और कोई इन्फेक्शन अगर मदर में होता है, आयशा और हम सब लोग इस पे ज़ाहिर काम आई करते हैं, थिंक हमें पता है असलम, कि क्या क्या अनम इन्फेक्शन, असलम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से मेल चाइल्ड टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होता है और मे बी ट्रिगर बन सकता है ऑटिज्म का, है ना। तो विटामिन डी जरूर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करवाना चाहिए। जी, अली इमरान का क्या क्वेश्चन है, उनका काइंडली रिप्लाई। किरण, अली इमरान का क्या क्वेश्चन है? अरे मैम का क्वेश्चन है कि मैम सदफ, आफ्टर 5 ईयर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंटल स्लो हो जाती है, जैसे कि 3 to 5 years में कहा जाता है कि रिकवरी इंप्रूवमेंट बहुत स्पीड से होती है। कैन यू मोटिवेट अस जिनके बच्चे 5 से 6 साल के ईयर्स के हो चुके हैं और वो काफी बड़े हो चुके हैं, कि उनकी रिकवरी और इम्प्रूवमेंट किस तरह हो सकती है नहीं हो सकती है, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स सबसे को पहले कि हो जी, जाते जितने भी बच्चे हमारे पास मोस्टली आते हैं वो बड़े ही आते हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं वो 3-4 साल तो पहले वैसे ही वो कर रहे होते हैं ना कि ये करा लें वो करा लें। तो बच्चे जब हमारे पास आते हैं 5, 6, 7, 8, 9, ये ज्यादातर एज के बच्चे आ रहे होते हैं। तो रिकवरी की जहां तक बात किया जाए, अगर आप सारी चीजों को सही से फॉलो करते हैं और अपने बच्चे की होल जो सिस्टम है उसको उसके ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उन बच्चों की स्पीच भी आती है हमारे पास। शायद वो भी वेबिनार में हो, पेरेंट्स इस्लामाबाद से हैं, 6.5 का बच्चा है, नॉन वर्बल था, और 6 मंथ से भी लेस उसको हुआ है, वो बच्चा भी बोलना स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो 6.5 साल का बच्चा अगर नॉन वर्बल से वर्बल हो सकता है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी होप है। पेरेंट्स से भी आप बात कर सकते हैं अगर किसी ने करनी हो, इस्लामाबाद से हैं वो। तो मतलब ऐसे वेरी कई गुड। केसेस हैं जहां पे हम 6, 5, 7, 8 साल के बच्चे को जब लेते हैं तो उनमें भी रिकवरी जो है वो पॉसिबल है, और उनके भी जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वो आप जो है परेशान ना हो, अपनी डेडिकेशन को कंटिन्यू रखें, अपने बच्चे के साथ वर्क करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको भी सारी चीजों में इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगी। और ब्रेन डेवलपमेंट जो है ऑटिस्टिक के लिए, हम यहाँ यूरोपियन जो है 12 साल कंसीडर करते हैं कि 12 साल तक हम वर्क कर सकते हैं फंक्शनल मेडिसिन को स्ट्रॉन्गर वे में। 12 साल के बाद थोड़ा सा हमारा जो है स्कोप और इंटरवेंशन चेंज हो जाती है, लेकिन आपका बच्चा 5-6 साल का है तो परेशान ना हो। मेरे ख्याल से 2 लोगों ने और क्वेरी दी हाँ, और अनम अनम असलम। असलाम और अनीसा राशिद। जी जी जी, अनम, उनसे आप लें। अनम आप क्वेश्चन करें, आपका अपने माइक आप म्यूट है। अनम्यूट कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम।
सॉरी, मुझे लग रहा था कि मुझे मैसेज टाइप करना है, मुझे माइक अनम्यूट नहीं करना। अच्छा, मुझे मैम सदफ से मुझे क्वेश्चन है कि मेरी बेटी 12 ईयर्स की है, ASD एप्रेक्सिया चाइल्ड है, मुझे उसके लिए प्लीज बेस्ट ओमेगा 3 और B12 सजेस्ट कर दें। जो मेडिसिन है डेफिनेटली आप कोई भी रैंडम अपने बच्चों को जब दे रहे होते हैं, लेकिन आई वुड सी एंड आई वांटेड टू गिव द एजुकेशन टू एवरी सिंगल पेरेंट कि एज जो भी हो, लेकिन बच्चे का देखना उसकी सारी चीजों, क्योंकि बाजूकात अगर बच्चे का ऑक्सलेट और हिस्टामिन की इशू है तो उसमें कोई भी हम फिश ऑयल ओमेगा 3 फौरन से नहीं दे सकते। स्पेशली जो बच्चे ओल्डर एज के हैं उनमें ज्यादा जो है हमें जैसे कह लें कि बच्चा हाइपर हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देयर इज नो नीड टू टेक अपॉइंटमेंट। आप मुझे मैसेज करके भी अपने बच्चे का थोड़ा सा हिस्ट्री शेयर करें और थोड़ा सा उनका जो है डिटेल्स शेयर करें, प्लस उसका वेट, बॉडी का वेट क्या है और बच्चे का केस क्या है, तो इंशाल्लाह आपको जो भी उसकी राइट ओमेगा होगा अकॉर्डिंग टू हर बेटा या बेटी है उसकी गट के अकॉर्डिंगली मैं दूंगी। क्योंकि ओमेगा 3 जो है वहां पे भी बहुत ज्यादा एरर्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वो भी हम वैसे ही नहीं रैंडम बच्चों को दे सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू मैम। आप किरण से ही कह दीजिएगा इनको, इंशाल्लाह वो मुझे आपकी क्वेरी दे देंगे तो मैं इनको बता दूंगी जैसे भी आपको बेहतर लगे। ठीक है, थैंक यू। जी, अनीसा राशिद। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा बेटा 5 साल और 7 महीने का है और उसको सिंस बर्थ उसके पेट में ब्लॉटिंग और गैस बहुत ज्यादा होती थी। तो हम पहले पाकिस्तान में थे, तो क्योंकि वो स्कूल बहुत पास करता था, दिन में 8 से 10 दफा स्कूल पास करता होता था, तो कई दफा उसको एंटीबायोटिक भी देना पड़ता था, देते होते थे डॉक्टर। तो 2 साल के बाद उसका ASD, बल्कि 1.5 साल में उसका ASD डायग्नोज हुआ। और अब मैं उसकी फंक्शनल मेडिसिन ले रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उसको डायरिया है या उसको कॉन्स्टिपेशन है। वो इस तरह के कुछ डॉक्टर्स कहते हैं, जो जहां से मैं फंक्शनल मेडिसिन ले रही हूँ, वो कह रहे हैं कि इसको डायरिया है। और जो मैं यहाँ से GP से मेडिसिन लेती हूँ वो मुझे लग्जेटिव देते हैं। तो उसमें मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि जब मेरे बच्चा जो है वो दिन में 7 से 8 स्टूल पास कर रहा है, तो मैं उसको लग्जेटिव क्यों दूं? बिल्कुल आई विल आंसर बिल्कुल, यू। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ तो ऑल, बिल्कुल सही है। एक तो ये देखना पड़ेगा ना कि उसको बार बार डायरिया हो क्यों रहा है, क्योंकि एज अ जी जी, कन्वेंशनल डॉक्टर जो या एज अ पीडियाट्रिशियन मैं ये देखूंगी कि भाई उस बच्चे को डायरिया हो क्यों रहा है, क्या ओके, वजह है, जी क्या जी, कुछ अनहाइजीनिक चीज है या क्या वो खा रहा है, क्या पी रहा है, सारी चीजें है ना। और बाज़ दफ़ा जो है जैसे जियाडियासिस वगैरह में भी जो है ऑल्टरनेट डायरिया और कॉन्स्टिपेशन होता है, अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो जब तक डिटेल हिस्ट्री ना ली जाए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं ना। तो इसमें जो है ये ज़रूरी है कि उसका कॉज ऑफ डायरिया कि वायरल है, बैक्टीरियल है, क्या है ना, तो ये देखना पड़ेगा। आई थिंक सदफ इफ यू कैन ऐड समथिंग। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब डायरिया का एक भी बच्चा और वो 6 वीक से ज्यादा हो चुके हैं और आप फंक्शनल मेडिसिन भी फॉलो कर रही हैं, तो मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आपका बच्चा अभी तक भी ठीक नहीं है। पहला जो स्टेप आपका फंक्शनल प्रैक्टिशनर है उसको फोकस इसी चीज पे करना चाहिए, लाइक डायरिया पे। ये लीकी गट का एक साइन है। प्लस आपके बच्चे को डेफिनेटली एलर्जीज हैं, आप उसके टेस्ट करवाएं, उसका फूड मैप का टेस्ट करवाएं। बार बार आप जो फूड दे रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, इन्फ्लेमेशन इंक्रीज कर रहा है, ओवर इम्यून एक्टिव है। डायरिया नहीं ठीक हो सकता जब तक आप इंटरनल उसकी फिक्सेशन पे काम नहीं करेंगे। उसकी डाइट कंप्लीटली डेयरी कट ऑफ करें और ग्लूटेन फ्री भी उसको करें। ठीक है, मेरे ख्याल से आप हमारे ही अच्छा, प्लेटफॉर्म से हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान से ही अच्छा, फॉलो सॉरी। कर रही हूँ एक डॉक्टर को। ठीक है, हाँ लेकिन ये है जी, कि आप उनसे सही लेकिन से मैंने डिस्कस करें। जी जी, मैंने उसको डेयरी फ्री तो कर लिया हुआ है, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला था कि ग्लूटेन फ्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सिलेट ग्लूटेन फ्री करने की जरूरत डायबिटीज है। उसका ये बताएं कि सिंपल स्टूल डीआर हुआ है कि नहीं। एक तो होता है कि स्टूल डीआर फॉर 3 consecutive days, है ना, और फिर स्टूल कल्चर, ये तो हाँ सिंपल टेस्ट हैं जो पाकिस्तान में होते हैं ना। जी जी तो पहले हम जी वो जी करें, उसके बाद फिर हम उस पे भी जा सकते हैं। जो डिटेल टेस्ट होता है ना वो महंगा होता है, जाहिर है, लेकिन पहले हम जो बेसिक जी टेस्ट जी। है वो तो करें। अच्छा, इनकी ओके, मतलब एजुकेशन इसका के लिए मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। आप यहाँ पे ये सोचें, अगर आप खराब खाना खा लें वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगा ना, वो बाहर आ जाएगा फौरन। तो आपका बच्चा खाना जी खाता जी है वो फौरन बाहर आ रहा है, तो क्यों वो खाना बाहर आ रहा है उसको जी थोड़ा बिल्कुल। नोटिस करें कि खाना जो जा रहा है
वो ग्लूटेन है, वो जो है शुगर इसकी बंद करें, और उसको लाइक 6 to 7 वीक्स आप जब चेंज करेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। साथ उसको इंजाइम्स की जो डाइट है वो भी फॉलो करवाएं, क्योंकि बाजूकात इंजाइम की डेफिशिएंसी या लेस हो गट के अंदर तो वो भी डायरिया का एक मेजर उसमें कर रहे होते हैं पार्टिसिपेट। अच्छा, यहाँ पे मुझे जीपी जब भी मेडिसिन देता है वो कहता है कि कॉन्स्टिपेशन है, फीकल इन्फेक्शन हो सकती है, आगे हम इसका एक्सरे करेंगे। लेकिन क्योंकि उसका डायरिया मुझे समझ नहीं आती कि ये क्योंकि उसको डायरिया है तो फिर किस तरह इन्फेक्शन हो आई थिंक सकती है अंदर। इंडिविजुअल केसेस हम इस तरह डिस्कस करना मुश्किल होता है, जब तक कि हमको डिटेल ना तो सदफ कर जी पाएंगी और जी ना मैं कर, कोई भी नहीं कर पाएगा ना। तो इंडिविजुअल पूरी ओके। हिस्ट्री हमको लेनी पड़ेगी और उसके बाद हम इस पे जी। वर्क कर सकते हैं ना। अनीसा, आप या तो डॉक्टर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको दोनों का अपॉइंटमेंट शेयर कर दूंगी, फिर आप इनसे इंडिविजुअल अपना केस डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, हमारे साथ हमारे और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं, जैसे कि शमसुन निसा हैं जो कि स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं और बहुत अच्छा हमारे साथ हमारे बोर्ड पे भी हैं। शमसुन निसा, आपका अगर कुछ अपना कुछ ओपिनियन है, कुछ आप बताना चाह रही हैं, कुछ कमेंट्स हैं तो जरूर दें। और पेरेंट्स से क्वेश्चन लेते रहें, क्योंकि मैं तो पेरेंट्स के लिए आज बैठने को तैयार हूँ, जितनी देर भी मुझे बैठना पड़ेगा क्योंकि खास तौर पे हमने रखा था इसी के लिए, है ना। और हमारी टेली क्लिनिक की सर्विसेज भी मौजूद हैं, उसका भी मैं आपको नंबर किरण आपको दे देंगी। तो अगर जी। आप आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री हैं, क्योंकि मैं कराची में होती हूँ पाकिस्तान में और सदफ माल्टा में होती हैं, और आई थिंक इनकी भी शायद टेली क्लिनिक की भी है, तो यस आप हम लोगों से जो है वो कर सकती है ना कांटेक्ट। सर, कैन यू प्लीज अनम्यूट मिस शमसुन निसा? आई थिंक वो कर नहीं पा रही हैं। ऑल्सो डॉक्टर इजरा, एक क्वेश्चन बार बार कोई पूछ रहा है, दैट इज व्हाट अबाउट विटामिन डी डेफिशिएंसी, हाउ टू करेक्ट इट विदाउट एनी कैल्शियम रिलेटेड इशू इन टोडलर विद एसडी रेड फ्लैग? ये तो बहुत ही सिंपल है, और जो पाकिस्तान में रहता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और इतना चीप है ये, क्योंकि आई प्रेफर इंजेक्टेबल। क्योंकि पाकिस्तानी बच्चों में तो बहुत ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं, तो हम ओरल देते हैं तो बाज़ दफ़ा वो लेवल सही नहीं होता, तो मैं इंजेक्टेबल देती हूँ। और 6 लाख का बहुत ही सस्ता इंजेक्शन होता है, स्ट्रॉस थेरेपी उसको कहते हैं, क्योंकि मेरी डॉक्टर गफ़ार बिल्लू के साथ रिकेट्स के ऊपर बाकायदा रिसर्च स्टडी है, उस पर हमने यही दिया था। अब अगर थोड़ा मुश्किल से मिलता है तो 2 लाख का इन ड्रॉप मिलता है, वो भी इंजेक्टेबल भी है और ओरल भी है। और कैल्शियम देना होता है तो अलग से हम बता देते हैं, अगर ज़रूरत होती है तो। ज़ाहिर है उसके साथ ज़रूरत होती है विटामिन डी के साथ कैल्शियम की, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल चाइल्ड। ओके, वी हैव मिस नादिया रियाज एज वेल। तो अगर मिस नादिया रियाज, अगर आप अपना जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैम इजरा, थैंक यू सो मच। आज का सेशन इट वाज रियली गुड, और मैम सदफ जो है वो आई एम रियली अमेज्ड टू मीट है कि उनका जो फंक्शनल मेडिसिन और मेडिसिन पे काम है, दैट इज अमेजिंग, एंड आई विश। सॉरी सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू। जी, नादिया, नादिया रियाज, नादिया अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक उनका डिस्कनेक्ट हो गया। अनस आप जरा इनको अनम्यूट कर दे, नादिया को। जी अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मिस शमसुन निसा बात कर रही थी, तो बीच में कुछ डिस्टॉर्शन हुई थी, तो उनका हाँ वो हो गया था डिस्कनेक्ट। लेकिन ये कि मैं खुद बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी आज के सेशन को, इट वाज रियली इंफॉर्मेटिव। और हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू एंड डॉक्टर्स। मिस सदफ को सुन के वाकई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो सारे कंसर्न्स हैं दे आर क्वाइट यूजुअल। हमसे भी लोग पूछते हैं, लेकिन ऑब्वियसली यू पीपल आर द राइट पर्सन्स टू आंसर। तो जैसे कि डॉक्टर आयशा ने कहा कि वी ऑल आर लर्निंग फ्रॉम यू ऑल। और बल्कि मेरा भी एक क्वेश्चन है, एक मदर का सवाल था कि अगर स्टूल जैसे बच्चे को आता है और उसमें दे फील के जो वो खा रहा है वैसे निकल रहा है, अदरवाइज उसकी डाइट सही है, सब कुछ सही है, उस हेल्थ भी सही है, लेकिन ये कि कुछ चीज़ें जैसे वो पीस अगर खा रहा है, रॉ पीस या स्पिनच खा रहा है, तो दे फील लाइक दैट स्टूल में वो शो हो रहे हैं।
तो अगर इसके बारे में डॉक्टर सदफ या डॉक्टर अनडाइजेस्टेड इजरा फूड। बता सके, थैंक यू। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस वेबिनार। और सबसे अच्छी बात यह है कि वी आर एबल टू रिप्लाई टू पेरेंट्स क्यूरीज। तो इंशाल्लाह मैं यही पेरेंट्स से कहूँगी कि आगे की भी जितना ये हमारा ट्रेनिंग सीरीज है, इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। सो मच मिस जी। मिस सदफ, डॉक्टर इजरा, जो अभी मिस सादिया ने क्वेश्चन किया उसका आंसर कर दीजिए प्लीज। अगर कोई भी इसका बच्चा जिसका कन्वेंशनल डॉक्टर अनडाइजेस्टेड, जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी क्लियर है। वो ये है कि अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जब आती हैं तो एमीबियासिस, जियाडियासिस या कोई भी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो उसको हम बहुत डिटेल हिस्ट्री लेके ज़ाहिर है कि सॉर्ट आउट करेंगे और उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। जी मिस सदफ, आप कुछ कह रही थी, आप भी बताएं। इसमें मैं यही कहूंगी कि इनको अपने बच्चे का पूरा फूड स्कैन करवाना चाहिए। अगर अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है और बच्चे का डेली बेसिस पे आ रहा है और गट उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही, तो आपको अपनी न्यूट्रिशन पूरी स्कैन करनी पड़ेगी। यानी कि उसकी प्रॉपर, अगर आप टेस्टिंग की तरफ नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसका न्यूट्रिशन स्कैन करवाएं सारा। यानी कि स्कैन से मुराद है कि उसका न्यूट्रिशन का प्रॉपर प्लान हो उसके पास, कि जी ये सही नहीं है। कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें इन केसेस में हम मना करते हैं कुछ फूड्स को। फिर जब डाइजेशन इंप्रूव होती है, गट सही से फंक्शन कर रही होती है, तो वो फूड हम वन बाय वन जो है दे सकते हैं बच्चों को। स्पेशली ऑटिस्टिक बच्चों में ये होता है। इसके साथ हम इनको मेडिसिन की भी सपोर्ट देंगे, जो कि इनकी इस कंडीशन से इन्फ्लेमेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई है गट के अंदर, उसको कम करेगी। अगर बच्चे बिल्कुल में ये सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए ना, कोई खास फूड किसी के लिए सही नहीं होता। तो सिर्फ जी ये ऑटिस्टिक बच्चों की न्यूरो टिपिकल बच्चों में भी होता है, खुद हम लोगों में भी होता है कि कोई खास चीज़ जी खाते हैं तो हमारा पेट खराब हो जाता है। तो खराब हो फिर जाता हम है। उससे थोड़ा सा बचने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिविटी। तो वो अपने बच्चे को देखे कौन से फूड से उसको प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, इससे पहले किसी ने जो है वो GFCF डाइट का पूछा था कि इसको ग्रेजुअली करें या एक साथ एकदम से शुरू कर दें। तो इसमें मोस्टली जो है वो ग्रेजुअली ही करना पड़ता है। 90-10 का रूल है ना, ये बतूल मिर्जा भी बताती हैं कि 90-10 का रूल है। और सदफ भी इसी तरह से ही बताती होंगी कि ग्रेजुअली। तो उसका क्योंकि टेस्ट, क्योंकि पिकी ईटर होते हैं, एकदम से आप चेंज कर देंगे तो मुश्किल होगी। कर भी नहीं ना तो सकते, उसको जो भी पेरेंट्स दे कर रहे भी हैं नहीं उसमें सकते। ग्रेजुअली दूसरी चीज ऐड करते चले जाएं, है ना। जी जी। तो उससे जो है काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। किसी ने हैंड रेस किया हुआ है वीवो के नाम से। आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ओ मैं हमारे जी मैं जी। मैं डॉक्टर रफीक हनानी बात कर रहा हूँ। और ये जो फूड के पार्टिकल्स स्टूल में पास होने का है, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड बी डन कि वो आप फूड जो कि जिनके पार्टिकल्स पास हो रहे हैं और जो पास आउट हो रहा है, वो अवॉइड किया जाए, उसको बंद कर दिया जाए। और इसकी वजह से जो है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैंने जो बात सुनी उसके लिहाज से, अगर फर्ज करें कि ग्रीन वेजिटेबल्स की डाइजेशन का इश्यू है, तो कोई एंजाइम डिफिशिएंसी है जो कि उनको डाइजेस्ट करती है, वो है उसमें बॉडी में। तो सबसे सिंपल चीज ये है कि आप वो फूड सारे अवॉइड करें, तो बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। उसके बाद आप जो भी इन्वेस्टिगेट करना है कर सकें, और फूड स्कैन करें, और जिन फूड से प्रॉब्लम्स हैं उन सबको आपने अवॉइड तो करना ही करना पड़ेगा। और जब तक के पूरा इन्फ्लेमेशन ठीक नहीं हो जाता और वो एंजाइम सब्स्टिट्यूट नहीं कर दिए जाते, तो उन फूड को अवॉइड किया जा सकता है। थैंक यू। और थैंक यू सो मच फॉर योर इसके इनसाइट। अलावा ना, रॉ फूड ना दें बच्चे को। ऐसे बच्चे को जिसका बार बार मुंह में फूड नजर आ रहा है, उसको कुक फूड दें प्रॉपर। कोई भी कच्चा रॉ फूड नहीं दें उसको, वो मोर उसके लिए जो है प्रॉब्लम करेगा इस कंडीशन में। सही। कैन वी गिव गोट मिल्क, किसी ने पूछा है नीचे। Ma'am, I have a question. Can I ask? यस यस यू कैन आस्क। Okay, ma'am, I want to ask कि ये ऑटिज्म या जिस तरह की जो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, इनकी जो कंडीशन होती है, माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर, ये किस तरह हम पेरेंट्स या फिर वो ये साइकोलॉजिस्ट वगैरह ये असेस कर सकते हैं बच्चे को कि वो किस पोजीशन पे है? ये तो स्क्रीनिंग पे ही ज्यादातर पता चल जाता है, और फिर डिटेल असेसमेंट में और सारी चीजें कवर होती हैं।
और डिजिटल असेसमेंट थोड़ा सा ज़ाहिर है कि काफ़ी एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, तो स्क्रीनिंग पे ऑलमोस्ट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। तो ये तो इंडिविजुअल चाइल्ड के ऊपर है, जब तक हम उसकी हिस्ट्री ना लें ना। आप अपने बच्चे को खुद देखें, आपका बच्चा कितना कैपेबल है, खुद से खाना खा लेता है, पहन लेता है कपड़े, कितनी कम्युनिकेशन है, किस तरह का लेवल है, तो वो आपको एज ए पेरेंट भी पता चल जाता है। लेकिन इसकी जो डायग्नोज है वो एक पूरी टीम इन्वॉल्व है, जिसमें सारे थेरेपिस्ट हैं, पीड्स के डॉक्टर हैं, सभी यानी पीडियाट्रिशियन भी है। तो वो फिर आपको माइल्ड मॉडरेट, और यहाँ यूरोप में हम माइल्ड मॉडरेट और स्वेयर नहीं कहते, कुछ भी नहीं कहते, ऑटिस्टिक ऑटिस्टिक ही है, डजंट मैटर। और ये मैं पाकिस्तान से ज्यादातर सुनती हूँ ना, माइल्ड है मॉडरेट है या क्या है, हमारे लिए यहाँ पे हर केस ही इम्पोर्टेंट, और जिसे कह लेंगे वो उसी तरह से जैसे आप सवेयर को देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपका बच्चा जिस लेवल पे भी स्ट्रगल कर रहा है, आप उसको सपोर्ट दें, ठीक है। और जब उसकी साइकोलॉजिस्ट की प्रॉपर असेसमेंट होगी, तो वो आपका इस क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर से आंसर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं एक ऐड करूं कि मैं ये इसको बाकायदा बहुत बार बार बोलती हूँ कि लेबलिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट। तो जो जी प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करें। और फिर ऑटिज्म इज बाय एक्सक्लूजन, बाज़ दफ़ा दूसरी चीज़ें एक्सक्लूड नहीं की होती और जी जी वो ऑटिज्म कह रहे होते हैं। तो अक्सर जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें इतने पेरेंट्स हैं और उनको ये भी पता नहीं कि उनका बच्चा है भी कि नहीं, है ना, ऑटिस्टिक। एग्जैक्टली। वो ऑटिस्टिक समझ रहे हैं, हालांकि वो सर्विल पेल्सी है या कुछ और प्रॉब्लम है ना। और दूसरा ये भी पेरेंट्स कहते हैं कि आप बता दें मेरे बच्चे को ऑटिज्म है कि नहीं है। फिर ये हाँ कहते हैं कि आप ये मुझे लगता है कि ये क्लासिक ऑटिज्म नहीं है, मेरा बच्चा फलां के बच्चे की तरह का नहीं है। आपका बच्चा किसी की तरह का भी ना हो, और आपका बच्चा जैसा भी हो, अगर वो किसी भी रेड फ्लैग में चैलेंजेस के साथ है, तो आप सिर्फ इंटरवेंशन पे वर्क करें, सोसाइटी को छोड़ दें, और ये भी सोचना छोड़ दें कि लेवल क्या है। और ये भी कहते हैं कि खुदा ना खास्ता ये ऑटिज्म तो नहीं है। देखिए वो एक बच्चा है, उसका ब्रेन डिफरेंट है, उसका ब्रेन डिफरेंट है ना। और डॉक्टर अनीला इस पे करती भी है कि हाउ टू कनेक्ट विद ऑटिस्टिक ब्रेन। हम मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ चीज़ें सीखते हैं, तो हमको ये सीखना चाहिए। फिर हमने डिस्कनेक्शन को। सनराइज थेरेपी पे भी बात की थी, तो वो डिफरेंट किस्म की किस तरह से उनसे हम कनेक्ट हों, है ना। हमारा बच्चा यूनिक है, वैसे तो हर बच्चा चाहे न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरो डाइवर्जेंट यूनिक ही होता है ना। तो हमको उसको कैसे डील करना है ये आना जी, चाहिए। अच्छा, इट्स अ एक पार्ट ऑफ एजुकेशन। जी जी। क्वेश्चन है कि अगर बच्चा हिटिंग सरफेसेस विद हैंड्स करे या बहुत ज्यादा डोर टेबल वगैरह को हिट कर रहा हो, तो उसको फौरी तौर पर घर पे मदर्स क्या उसका लाइक उसको कैसे इंटरवेन कर सकती हैं, किस तरह उसकी डायरेक्ट कर सकती हैं, डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं उसको? सबसे पहले तो उसको सेफ करें ना, मतलब उसको डिस्ट्रैक्ट करें, उसको वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करें। ये नहीं कि उसको वो करता जा रहा है तो उसको हिट करने दें, वो तो नहीं। सेकेंडली, इसका हाई ऑक्सलेट जो है बच्चे का, ज्यादातर जिन बच्चों में होता है, इनके अंदर ये ज्यादातर मैं देखती हूँ आ रहा होता है। थोड़ा सा जो ऑक्सलेट रिच फूड है या ट्रिगर फूड है, वो थोड़े से बच्चे को कम दें, शुगर बंद करें उसकी। और प्लस शाम के टाइम पे काल्मिंग जो न्यूट्रिशन है वो बच्चे की इंक्रीज करें, यानी कि आफ्टरनून में नर्वस सिस्टम को शट डाउन और उसका जो है काल्मनेस के लिए और सेटल डाउन होने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिशन, या अगर हम मेडिसिन नहीं दे सकते तो हमें जैसे कैमोमाइल टी है, ठीक है, हिस्वेक्स टी है। इसके अलावा हम ऐसे केसेस में जहाँ पे बहुत ज्यादा ये बच्चा हेड बैंगिंग कर रहा है, तो उसको सीबीडी ऑयल भी देते हैं, लेकिन बड़ी अच्छी क्वालिटी का। ये जो पाकिस्तान में 2 नंबर मिल रहा होता है वो नहीं, सही वाला अच्छी क्वालिटी का, अच्छा एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बच्चे ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम कोई भी उनको ऐसी दवाई नहीं दे सकते। तो ये समझे कि जो बहुत एक्सपेंसिव वाला होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा, वो 2 से 3 ड्रॉप 6 वीक्स के लिए आप दें। फिर इंशाल्लाह साथ लो ऑक्सलेट की इसको डाइट दें, तो आपको ये जो कंसर्न है हेड बैंगिंग का और टैप करने का या बार बार करने का, इंशाल्लाह उसमें डिफरेंस नजर आएगा। ओके, और हम लोग बच्चे की जीएफसीएफ डाइट स्टार्ट करते हैं, तो क्या वो लाइफ टाइम के लिए जीएफसीएफ डाइट पे रहेगा या फिर नहीं नहीं, थोड़ा टाइम बिंग के लिए होता है? वो अनटिल कि उसकी स्पीच आ जाती है, अनटिल वो सोशली इंटरेक्ट कर रहा है, और अनटिल कि वो अपनी सिटिंग टॉलरेंस में जाके क्लास का वर्क कर रहा है। ये 3 चैलेंज या 3 गोल हैं, इनको हम अचीव कर लेते हैं। और जब पेरेंट्स बता रहे हैं कि ही इज डूइंग फैंटास्टिक, तो फिर हम ग्रेजुअली जिस तरह से हमने फूड निकाले थे उसी तरह से वापस जाना है। ये नहीं कि एकदम से जाओ सारा कुछ खा लो, बिकॉज इट्स नॉट गुड। सो वी नीड टू रीस्टार्ट दोज फूड बाय लाइक हाउ इट्स अ वेरी जेंटल अप्रोच। तो वो डिसाइड हम लोगों ने करना होता है, या जैसे कोई भी प्रैक्टिशनर है वो करेगा, आपको बताएगा कि अब आपका बच्चा जो है प्रॉपरली जो है लाइक होलिस्टिकली वो हील है, आप इस चीज की तरफ जो है वापस आते हैं। ये लाइफ टाइम नहीं है कि आपने पूरी लाइफ ही जीएफसीएफ रखना है। और ऐसे बहुत बच्चे हैं मेरे पास
और वो अब मेडिसिन नहीं ले रहे, वो न्यूट्रिशन की है और वो बकायदा नॉर्मल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहे हैं, वर्बल है वो। Okay. Thank you. Someone asked, my kid was passing stool multiple times a day for last 10 days. He doesn't take sweets and junk food, only takes paratha of chakki atta and rice in his meals with fruits and vegetables, meat and on all healthy food. He said, give him GFCF right away. He will be okay in 15 days. Plus, he is taking 0.25 ml of Risperdal vitamin D, but he is not improving, only regressing day by day. I think this is also a very individual case. तो इसके लिए I think so कि we should say कि आप कंसल्ट कर लें। जिनको अपने बच्चे के हवाले से कोई भी क्वेश्चन करना है या फिर डिटेल में बात करनी है, वो मुझसे कांटेक्ट करिएगा। तो आई विल रेफर यू टू डॉक्टर अजरा और मिस सदफ, देन मैं उनको अपॉइंटमेंट दे दूंगी। इज इट बेटर मिस सदफ? वो जिनका यस यस, और जो अभी पूछ रहे थे पेरेंट हेड बैंगिंग वाले, उनका शायद नीचे मैसेज आया। हाँ जी, सीबीटी ऑयल मैंने बोला है, लेकिन अच्छी हाई क्वालिटी का आपने लेना है, ठीक है। अच्छा, कैमोमाइल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं हाइपर एक्टिव बच्चों में। जी और जी एक तो कैमोमाइल हर्बल टी है, दूसरे होम्योपैथिक का भी अवेलेबल है, तो जी। मेरे पास तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके हैं। और जो बच्चे हाइपर हैं उनके पेरेंट्स कैमोमाइल टी उनके साथ भेज सकते हैं, पानी वाली बोतल में भी बना के, हिस्बिक्स भी भेज सकते हैं। जस्ट अमेजिंग, आपको अपने बिल्कुल। बच्चे के खुद पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली अगर बच्चा पिकी ईटर है तो वो हार्ड होगा, लेकिन जो बच्चा पानी एंड लिक्विड लेता है, आप उसको जरूर ट्राई करें डेली बेसिस पे। एंड व्हाट एप्सम अबाउट सॉल्ट बाथ जो है वो भी बहुत बहुत डिटॉक्स उसके बाथ, अच्छे रिजल्ट्स हैं। डिटॉक्स बाथ की मैं यहाँ पे ये करूंगी कि पेरेंट्स इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। जब डिटॉक्सिफिकेशन पे आपने काम करना है तो बाथ जो है उसके साथ हाइड्रेशन अच्छी हो, ज्यादा से ज्यादा पानी बच्चे को दें। दूसरा, बाथ देने के बाद ड्राई वेल करें कि जो टॉक्सिन उसके बॉडी के ऊपर है वो अच्छे से आप टॉवल से उसको ड्राई वेल करें। तीसरा, डिटॉक्स बाथ लॉन्ग जैसे कह लें ड्यूरेशन में नहीं है, सिर्फ 20 मिनट्स है। 20 मिनट से ज्यादा आपने नहीं उसको बच्चे को बैठने देना। उसके बाद जो है वो जितना बेनिफिशियल है उतना उसका साइड इफेक्ट या नुकसान भी बच्चे को सिंपली हो सकता है। चौथा, जब आप दे रहे होते हैं डिटॉक्स बाथ तो बच्चे का यूरिन मॉनिटर करें, वो डार्कर होना चाहिए। अगर आप दे रहे हैं तो आपको उसका बेनिफिट भी तो हो ना। तो अगर डार्कर आता है तो वो साइन है कि ये आपका प्रोसेस या जो भी आप ये कर रहे हैं प्रोटोकॉल ये फॉलो, ये इससे इसको फर्क आ रहा है। लेकिन एज आई सेड कि इसमें पानी ज्यादा से ज्यादा, कोकोनट वाटर, ओआरएस वाटर ज्यादा से ज्यादा उस दौरान दें बच्चे को। अच्छा, एंड मेरा व्हाट एक अबाउट क्वेश्चन है उनसे सदफ से कि जो ये आप लोग प्रोटोकॉल बताते हैं ये सिर्फ चिल्ड्रन विद ऑटिज्म के लिए है या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए भी हम फॉलो कर सकते हैं? स्पेशल नीड्स के लिए भी आप कर सकते हैं, किसी भी न्यूरोलॉजिकल जो कंडीशन है उसमें भी हम कर सकते हैं। जैसे लेकिन डाउन वो सिंड्रोम है या और भी है ना, उनके भी डाउन सिंड्रोम वाले कॉग्निशन भी भी बच्चे हैं बाधित ना। होते हैं, डिलेड जी होती हैं। जी जी। सभी के लिए हम कर सकते हैं जी। डिपेंड करता है कि बच्चे के क्या सिम्टम्स हैं और वो किस आई मीन हम स्पेसिफिक किस चीज को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। किसी ने मिस सदफ के सिटिंग टॉलरेंस का पूछा है तो उसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी पहले जरूरी होती है, उसके बाद स्पीच थेरेपी होती है। एंड व्हाट अबाउट 11 या 12 इयर्स के बाद बच्चे में स्पीच डेवलप हो सकती है? 11-12 years के बाद I would say कि it's bit hard, but we still have the kids and we are working on them. उसमें बच्चे की हम फोकस ये नहीं कर रहे होते कि थेरेपी करवाएं, उसमें हम बच्चों को लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी की डिवाइस है स्पीच के लिए, और मोर जो बच्चे की सपोर्ट है वो विजुअल से ज्यादा टेक्नोलॉजी पे करवाई जाती है, जिसमें बच्चा जो है वो कम्युनिकेट कर सके। क्योंकि वो अगर रिसेप्टिव लैंग्वेज अच्छी है, एबल टू यूज हर और हिज डिवाइस, तो फिर हम जो है इसके बारे में को इवेलुएट कर सकते हैं कि बच्चे की जो स्पीच है वो आ सकती है कि नहीं आ सकती। 12-13 साल के जो बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनकी इतनी देर से जो हमने उनकी चीजों को छोड़ा हुआ है, सही से प्रॉपरली वर्क नहीं किया हुआ, तो इट विल टेक सम टाइम। बट होप हर फैमिली के लिए होती है। आप अल्लाह पे तवक्कल रखें, बच्चों पे काम करें, और साथ इंपॉर्टेंट है कि उस बच्चे को डिवाइस दें स्पीच के लिए। एंड क्या हमारे ओमेगा साथ क्या है, रूही फातिमा मौजूद हैं। उन्होंने अपने अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चे को, चूंकि उसको सेरेब्रल पैल्सी भी था और ऑटिज्म भी, तो उन्होंने बहुत अच्छा ब्रॉट अप किया है। रूही, आप कुछ इसमें कमेंट अपना देना चाहेंगी? रूही, फाइज की मदर। रूही को अस्सलाम वालेकुम अनम्यूट मैम। कर दें अगर वो कुछ बताना चाहें तो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
जी मैम, मेरा ही क्वेश्चन था कि 11 और 12 इयर्स के बाद क्या बच्चे के अंदर स्पीच डेवलप हो जाती है? तो मैम सदफ ने ये एक्सप्लेन किया कि हमने पहले सही से वर्क नहीं किया तो उसके बाद इस वजह से ऐसा हुआ है, बट मेरे केस में हमने वर्क किया, डेफिनेटली प्रॉपरली वर्क नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान का आपको पता ही है, यहाँ बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, डॉक्टर्स और हमारी अपनी डाइट सही नहीं होती, हम प्रिजर्वेटिव्स वाली डाइट ले रहे हैं, जंक ले रहे हैं, या हम हमारे यहाँ स्वीट बहुत ज़्यादा खाई जाती है नॉर्मली सब फैमिलीज में। तो ये एक रीज़न हो सकती है कि शायद इसलिए मेरे बेटे की जो है स्पीच डेवलप नहीं हुई। लेकिन वो 10.5 इयर्स का है और 1 ईयर का जब था तब से उसके पास बैबलिंग वर्ड्स हैं। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस की जहाँ तक बात है कि कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो मतलब ऑब्वियसली वो यूज़ तो करता है, लेकिन वो उसको तोड़ भी सकता है, और जो उसके अंदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस के अंदर जो टूल्स हैं वो मेरा बेटा ऑलरेडी कम्युनिकेट कर रहा है। लाइक वो टॉयलेट ट्रेन है, वो खाना मांग लेता है, वो किचन से खाना ले आता है। बट यहाँ पॉइंट है कि मुझे लगता है कि अगर वो बोलेगा तो उसकी लाइफ और ज़्यादा बेटर हो सकती है, हम उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से लाइफ में जो है ना, अपनी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में, लाइक मेरी एक नॉर्मल बेटी भी है, न्यूरोटिपिकल बेटी भी है, उसके साथ हम अच्छी तरीके से उसका ब्रॉटअप कर सकते हैं। तो मेरा अभी ऑब्वियसली वो अभी 13 या 14 ईयर्स का नहीं हुआ या 18 ईयर्स का नहीं हुआ, तो मेरा कंसर्न है कि क्या अभी उसकी स्पीच डेवलप हो सकती है, और या हम कैसे करें उसकी डेवलप स्पीच? आप उसका फंक्शनल टेस्टिंग की तरफ जाएं, क्योंकि बच्चा 10.5 का है, सबसे पहले उसके फंक्शनल टेस्ट करवाएं, यानी कि उसके बेसिक ब्लड टेस्ट भी कराएं, फ्रैट टेस्ट भी करवाएं, यानी कि जितने उसके फंक्शनल पैनल के टेस्ट हैं वो होने चाहिए। और उसमें हमारा जो होगा वो टाइम वेस्ट नहीं होगा, फिर हम मजीद बच्चे को बेस्ट वे में सपोर्ट कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कटिंग शॉर्ट, अगर हम फ्रेट टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर अब क्या कर सकते हैं फिर? नहीं तो फिर हम इसमें उसकी फंक्शन, जी सॉरी, हाँ हाँ, बिल्कुल आप बता दें। मैंने कहा फॉलिनिक एसिड के अच्छे रिजल्ट्स हैं, जी लेकिन फॉलिनिक एसिड से पहले फिर जीएफसीएफ डाइट जी होती है, तो उसके फंक्शनल बाद उसके लाइक अच्छे रिजल्ट ज्यादा आते हैं। आप उसको लुकोवेरिन दे सकती हैं, फंक्शनल मेडिसिन हम उसको प्रॉपरली उसकी सेटअप कर सकते हैं, साथ उसकी न्यूट्रिशन पे वर्क करें। प्लस ये है कि उसकी थेरेपी और मोटर एक्सरसाइजेस पे, बच्चा बड़ा है उसको बालून्स के साथ एक्सरसाइजेस करवाएं, किसी चीज में हवा भरना, ब्लो करना। उसके बाद जो है ऐसी चीज जिसमें उसका जॉ जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें देर आर सो मेनी टूल्स, इसका स्पेशली किट स्पीच भी मिलता है थेरेपिस्ट आई थिंक कैन टेल यू अमेजोन बेटर। से। जी अमेजोन से एक किट भी मिलती है जो नॉन वर्बल बच्चे हैं, अगर आप वहां से पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं, वो हम यहाँ पे बच्चों के लिए यूज करते हैं। वो टूल्स हैं सारे एक्सरसाइजेस के, यानी कि एक जैसे हम टंग डिप्रेसर है, टंग को नीचे करके चेक कर रहे हैं बच्चे का टॉन्सिल सुनिए, तो वो सारी स्पीच के टूल्स हैं, 6-7 टूल हैं। अब वो भी यूज कर सकती हैं अपने बच्चे को डेली एक्सरसाइजेस के लिए। और ऑब्वियसली उसको फंक्शनल मेडिसिन मस्ट चाहिए, न्यूट्रिशन मस्ट चाहिए, स्पीच थेरेपी भी चाहिए, और एक्सरसाइजेस भी चाहिए, और मोटर एक्सरसाइजेस भी चाहिए उसको। ब्रेन जिम भी उसमें आपको अपने बच्चे को फॉलो करवाएं लाजमी। अच्छा, तो जीएफसीएफ डाइट अगर मैं फॉलो करती हूँ तो कितना अरसा के लिए फॉलो करनी पड़ेगी? क्योंकि आई एम माई सेल्फ बायोकेमिस्ट और मैंने एमफिल भी किया हुआ है, तो मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि तुम एजुकेटेड हो तो हम जो है हम रिसोर्सेज पे स्पेंड करते हैं रादर कि हम टेस्टिंग, जो एक्सपेंसिव टेस्टिंग है जो हमने बाहर से करानी है, तो बेहतर है कि तुम खुद ट्राई करो ना अपनी रिसर्च वगैरह करके। तो आपको क्या लगता है कि मुझे जीएफसीएफ डाइट कितने अरसे देना चाहिए उसे? अनटिल कि आप उसकी जो कंसर्न है उनमें डिफरेंस देखें, अनटिल, क्योंकि हीलिंग जो होती है वो एक दिन नहीं हो सकती। बच्चे हैं ना, उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन बहुत पुरानी पड़ी हुई है, नेग्लेक्टेड एरिया ऑफ बॉडी सिस्टम, उन पे जब हमने सर्कुलेशन इंप्रूव करनी है ना, ये समझ लें कि जब आप किसी चीज में पानी डाल रहे हैं तो वो नीचे तक जाने में टाइम लगेगा, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी बच्चे की बॉडी का डिफरेंट है, दूसरे बच्चे का डिफरेंट है। डेफिनेटली देयर इज अ होप, ही स्टिल वेरी यंग। हम यहाँ पे ऑटिस्टिक बच्चे को 12 इयर्स तक जो है वो कहते हैं कि उसको बेस्ट सपोर्ट दी जाए उसके सारी चैलेंजेस को। तो अभी वो 10.5 कर, आप अपना टाइम जो है उसको कर सकते हैं, जो है उसमें इंशाल्लाह वो होगा जरूर डिफरेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आई थिंक लेट्स डू द कंक्लूजन कि काफी लोगों के मेरा ख्याल है कि हमने रिप्लाई किया है, और अब कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं है, और इंडिविजुअलाइज्ड आफरीन है डिस्कशन कोई, तो चलती रहेगी। आफरीन है कोई, वो शायद बात करना चाह रही हैं, जी जी आफरीन। अनम्यूट करके आप। जी मैम आप मैंने ही आपसे मैं क्वेश्चन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, मैं जो मैंने ओके बताया मेरा 10.5 इयर्स का बेटा है। थैंक यू सो मच ओके मैम। ओके। इनका हो गया है।
न्यूरोमोटर एक्सरसाइजेस बस। डॉक्टर शमसन निसा ने भी काफी चीजें ऐड की हैं स्पीच थेरेपी में, वो आप लोग जरूर रीड कर लीजिएगा ना। जी फिर जी भी अगर किरण। क्वेश्चंस रह गए हैं तो वो आप हमारे ग्रुप में पूछ सकते पूछ रहे हैं, सॉरी वो पूछ रहे हैं कि सीबीडी ऑयल का यूज कैसे करना है। सीबीडी ऑयल छोटी सी एक शीशी होती है, आप जब उसको खोलेंगे उसमें से सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप आपने डायरेक्ट उसकी जबान पे बच्चे के लगाने होते हैं। और कोशिश करें उसके बाद उसको फैट वाला फूड दें, लाइक कीमा है, शामी कबाब है, घर के बने हुए। तो अगर नहीं पॉसिबल तो आप उसको शाम के टाइम पे, इवनिंग टाइम में 3 कतरे देंगे। और अगर बच्चा बड़ा है तो आप 7 ड्रॉप्स तक ओवर द वीक्स जाएंगे, यानी कि 2 से 3 वीक में, लेकिन 3 ड्रॉप सेफर है हर बच्चे के लिए। मिस सदफ, क्या सीबीडी अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में? अवेलेबल है लेकिन वो सही नहीं है, मतलब वो क्या कहते हैं, कैरियर ऑयल के साथ है, मिक्स्ड है। लेकिन जेन्युइन जो है वो इस तरह का होगा, ये देखें छोटा सा ऐसे वाला, यानी कि इस साइज का वो आता है, वो इट्स सेल्फ सीबीडी है सिर्फ। पाकिस्तान में अब मुझे नहीं पता, लेकिन देर आर सो मेनी फैमिलीज जो सेंड करती हैं, लेकिन वो आई मीन नहीं है सही। लेकिन अगर किसी को मिलता है सही तो वो डेफिनेटली अपने बच्चे को लाजमी दे। जो हेड बैंगिंग, टेंट्रम, ओल्डर एज के हैं, अनसेटल्ड हैं, शाम के टाइम पे बड़ा तंग करते हैं, और जिनका जैसे कह लें कि इवनिंग जो है वो वेरी डिफिकल्ट है फॉर पेरेंट्स। अच्छा, और डॉक्टर अजरा और मिस सदफ, क्या ओमेगा 3 का कोई रोल है हिटिंग में? जो बच्चे हिटिंग कर रहे होते हैं, इज देयर इज एनी रोल ऑफ ओमेगा 3? ओमेगा 3 जो है एक ऐसी सप्लीमेंट है जिसको पूरी दुनिया रैंडमली यूज कर रही होती है। लेकिन ये ऐसा ऐसा वाहिद सप्लीमेंट है जो इतने हमें बच्चों को बिहेवियर और चीजें दे रहा होता है, जिसे हम कह रहे हैं कि नहीं इससे नहीं, इससे नहीं। लेकिन ओमेगा 3 जो है बड़े ध्यान से स्टार्ट करवाना पड़ता है किसी भी ऑटिस्टिक बच्चे को। देर आर सो, इसमें मैंने एक डिटेल वीडियो भी डाला था। पेरेंट्स खुद से जो ओमेगा 3, 3, 6 और 3 डिफरेंट किस्म के दे रहे होते हैं, इंपोर्टेड भी दे रहे होते हैं। तो डेफिनेटली ब्रेन डेवलपमेंट में या हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को ये हेल्प करता है। लेकिन हर बच्चे को हम अगली स्टेज में ओमेगा 3 नहीं दे सकते अनटिल उसकी गट जो है, अगर उसके सर्टन इश्यूज हैं, सेंसिटिविटीज हैं, उनको हम पहले काम डाउन करेंगे, सारी चीजों को स्टेबलाइज करेंगे, तो फिर हो सकता है सेकंड या थर्ड चेकअप में जाके हम उसको ब्रेन डेवलपमेंट के हिसाब से उसको ओमेगा 3 या स्पीच के लिहाज से उसको स्टार्ट करवाएं। लेकिन मैंने देखा है अभी ये जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं वो सभी दे रहे होते हैं खुद से, और साथ बच्चे को डायरिया भी है, हेड बैंगिंग भी है, बच्चा हाई ऑक्सलेट इश्यूज के साथ है, हिस्टामिन सेंसिटिविटीज के साथ है, देयर आर सो मेनी इश्यूज विद द चाइल्ड, बट वो स्टिल ओमेगा 3 दे रहे हैं कि उनको लग रहा है कि शायद ये ब्रेन डेवलपमेंट और स्पीच लेके आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पे एजुकेशन हम उनको दे सकते हैं कि पहले गट पे वर्क करें, फिर स्पीच जो आइटम है या प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी सप्लीमेंट है, आप उसको 6 to 7 वीक्स जो है आफ्टर डाइट करेक्शन के आप स्टार्ट करवा सकते हैं। ठीक है। बट डॉक्टर फायजा रशीद उन्होंने हैंड रेस किया है, उनका अब ये लास्ट क्वेश्चन ले लें मेरा ख्याल है। जी डॉक्टर फायजा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम डॉक्टर अजरा सलाम। और सदफ, नादिया, सब और सब टीम मेंबर्स को बहुत मेरा सलाम और बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जो है ना ये बहुत अच्छा वेबिनार आपने कंडक्ट किया है। मुझे बहुत खुशी है और बहुत ज़्यादा खुशी है थैंक इसको यू। देखकर। अब हाँ, मेरा अपने बेटे के बारे में ही सवाल है ये कि वो तो डॉक्टर अजरत भी उनसे मिल चुकी हैं, उनके भी अंडर ट्रीटमेंट रहा है, और डॉक्टर ये सदफ नाजिया की भी। तो लेकिन जो है ना ये वो माशाल्लाह उसकी इम्प्रूवमेंट जो है ना मैं शेयर ये करना चाहूंगी कि वो एक ब्रेन फॉग, सबसे बड़ा उसका इशू स्पीच के अलावा भी ब्रेन फॉग था कि ही वाज नॉट इन द आवर एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट से उसका इंटरेक्शन नहीं था, सोशल इंटरेक्शन नहीं था। तो जो है कि जब मैंने जो है वो दोनों हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी कंसल्ट से जो है उसको उसकी ट्रीटमेंट को फॉलो किया, तो माशाल्लाह उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गई है। लेकिन स्पीच अभी भी स्टक है, मतलब वन वर्ड पर है, अभी सेंटेंसेस पर नहीं है। ही इज 5 years old। और लेकिन अभी मैं अभी आजकल जो मैं इशू फेस कर रही हूँ ये कि वो इतना होशियार हो गया है माशाल्लाह से, उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज इतनी बढ़ गई है कि उसको पता है कि ना हम जो चाय के लिए जो खुला दूध इस्तेमाल करते हैं ना वो किधर रखा हुआ है फ्रिज में, तो वो ही हम छुपाते रहते हैं और वो निकाल के ना उसने वो डेयरी यूज करना होता है। हालांकि मैं डेयरी फ्री किया हुआ है उसको कम्प्लीटली, वो डेयरी फ्री है पिछले 3 सालों से, और कोकोनट मिल्क पे शिफ्ट है। 100% कोकोनट मिल्क पे था कि अगर उसको दूध चाहिए होता है तो हम कोकोनट मिल्क देते हैं। लेकिन अब वो इतना उसकी ना रिसेप्टिव लैंग्वेज इतनी हो गई है कि वो उसकी समझ कि वो टेस्ट पहचान लेता है कि भाई ये कोकोनट मिल्क है, ये डेयरी है, तो उसको डेयरी के वो पीछे लग गया है इस वक्त कि उसको जो है ना वो थोड़ा अब कम करें काउज मिल्क उसका पीना डेयरी है। का इंटेक जो है ना, आप थोड़ा डेयरी का हाँ, कम अब ये है मिल्क कि जो इस्तेमाल करें, बाकी वो थोड़ा सोशल इश्यूज हाइड और करके रखें हिटिंग, दूध को। उसकी सिटिंग टॉलरेंस, उसका बिहेवियर, उसके सोशल इश्यूज सब कुछ
अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकल्लाह जो है वो सेटल्ड हो चुके हैं। लेकिन वो कि स्पीच जो है ना वो अभी भी स्टक है, बस उसके लिए इंतजार, अल्लाह ताला मेहरबानी करे अपनी। मुझे जो है बस ये स्पीच का इशू है, वरना वो जो दूसरे इश्यूज जो थे, जो बिहेवियर इश्यूज थे या सेटिंग के या फिर फोकस के, वो तो सेटल डाउन हो गए, पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, मेन स्ट्रीम में जा रहा है, इंशाल्लाह प्रोग्रेस कर रहा आप है। जो इतनी प्रोग्रेस माशाल्लाह बता रही हैं, तो जो स्पीच वाली है वो भी हम इंशाल्लाह मैं डॉक्टर अज़रा सून आपसे सुनेंगे। आप सारी चीजों को अच्छे से फॉलो कर रही हैं, सिर्फ फोकस करें कि आप उसकी बस ये बस ओरो इतना मोटर हो गया कि एक्सरसाइजेस करवाएं। वो फ्रिज खोल के जहाँ खुला दूध रखा हुआ है वो निकाल के खुद जो है ना ग्लास में डाल के पीने लगता है, और हम बस रोकते रह जाते हैं उसको। मतलब उसको टेस्ट का भी इतना पता चल चुका है कि वो बेवकूफ नहीं रहा बिल्कुल भी, कि हम उसको किसी तरह से वो कर सके। तो ये चीज है, आपने खुद ही कहा कि उसकी बस ये रिसेप्टिव है। लैंग्वेज अच्छी है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके अंदर हमने एनर्जी तो दे दी है डॉक्टर अज़रा ने और मैंने, तो अब इंशाल्लाह स्पीच भी आ जाएगी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। या फिर हम आई खुला थिंक दूध लाने ही छोड़ देंगे घर में। ये जी, एक रीजन ये हो सकता मेरे ख्याल से कोई है। पेरेंट है वो पूछ रहे हैं कि हम बकरी का दूध दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। ये एक बड़ा जो है इसमें इसको हम अर्ली स्टेज पे गट हीलिंग में मना करते हैं, नहीं देना चाहिए। ऊंट का दूध भी मैं मना करवाती हूँ, जब तक हमारी बच्चे की जो गट है किसी भी ऑटिस्टिक की वो हील नहीं है। हील से मुराद ये है कि बच्चे को सारे इश्यूज जितने पेरेंट्स बता रहे होते हैं वो रिजॉल्व ना हो, तो फिर हम ये बाकी जो मिल्क है उनकी तरफ कंसिडर करेंगे, लेकिन अर्ली स्टेज पे नहीं बकरी, क्योंकि इसमें भी कैसीन है जो कि ऐसी प्रोटीन है बच्चे जो है वो नहीं ले सकते, डाइजेस्ट नहीं सॉरी कर सकते, और उसके अंदर इंफ्लेमेशन दोबारा से इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। तो हम ऐसा कोई भी फूड नहीं इनको लाइक फर्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में कहेंगे कि वो लें। तो मेरे ख्याल से इसको वंस इन अ वीक अगर आप कंसीडर करेंगे तो आप दे सकते हैं, अगर आपकी बहुत मजबूरी है, वरना उसको अवॉइड करवाएं। किसी ने पूछा अगर बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस अच्छी है और वर्बल हो, बिहेवियर इश्यूज भी जस्ट माइनर हो, तो क्या फिर भी बच्चों को जीएफसीएफ डाइट पे लेकर जाते हैं हम? वर्बल बच्चा वर्बल मेरा ये क्वेश्चन था कि इसको डेयरी फ्री अगर क्या मैं इसकी अगर ये सॉरी मेरी आवाज भी, अगर ये जो ना मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी जी आ बोल। रही है, आ रही है। कैन यू, बोले बोले डॉक्टर फाइजा, वी कैन अगर हियर जो यू। है मेरा बेटा अगर मेरा बेटा भी वर्बल मतलब सेंटेंसेस पे नहीं आया लेकिन वर्बल है, तो क्या मैं अगर वो कभी कभी जो है वो कभी नहीं, अब तो डेली वो जो है वो गाय का दूध पीने लगा है, काउज मिल्क, तो उससे नुकसान तो नहीं होगा? क्योंकि हम उसे रोकते हैं या छीनते हैं तो वो और ज्यादा स्ट्रेस में जाता है और फिर ज्यादा गुस्सा दिखाता है कि जो है ना मुझे क्यों नहीं मुझे ये जो है ना गाय का दूध दे रहे। और जो है ना वो उसने बिल्कुल टोटली रिफ्यूज कर दिया कोकोनट मिल्क को इस आई वक्त वुड फिलहाल, तो वो बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया। मैं गाय का दूध पी के उसको थोड़ा सुकून मिल सजेस्ट जाता है। नहीं, मैं सजेस्ट करूंगी अभी वो फॉलिनिक एसिड ले रहा है, अब उसको थोड़ा कम ही दें। ये उसके लिए हाँ इतना फोलिक महंगा यानी आप कि उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, थ्री ऑन्स तो थ्री थोड़ा ऑन्स सा पर डे पानी थ्री डाल ऑन्स के पर जो डे ना तक देते हैं। एक एक बोतल में पानी और हाँ थोड़ा सा पानी दूध डाल डाल के, के कलर चेंज वाला फ्रिज में रख दें, वही उसको दे सकते हैं आप, यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या सही उसकी सही आदत पानी छुड़ाने के डाल लिए। देते हैं। पानी और दूध जी मिक्स जी करके पानी डाल बोतल में देती वो हूँ। रख दें और ग्रेजुअली उसको आप फिर बंद कर दें। उन्होंने एक और पेरेंट थे शायद, वो उनकी नीचे आई हुई है कि उनका बच्चा वर्बल है और सिटिंग टॉलरेंस शायद पता नहीं क्या था क्वेरी उनका। टॉलरेंस भी अच्छी है और वर्बल भी है, बिहेवियर इश्यूज है बट बहुत माइनर है, तो क्या उसको जीएफसीएफ पे डाइट पे रखना चाहिए? बेसिकली व्हाट आर द थिंग्स कि जिसपे हम बच्चे को जीएफसीएफ डाइट पे ले जाते हैं? लेकिन उसके साथ बच्चे की गट के क्या मतलब है, मतलब बच्चा किस चीज की स्ट्रगल में है। अगर वो स्ट्रगल्स मेंशन करेंगे या चैलेंजेस या बच्चे की क्या इश्यूज हैं, तो फिर ही हम उनको गाइडेंस दे सकते हैं कि उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर गट इश्यूज बहुत ज्यादा है, गट भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, उन्होंने कहा गट भी बेहतर है, तो फिर आप बताएं कि जीएफसीएफ डाइट पर लेकर जाएंगे बच्चे को? No, I think there is no need है। फिर उस तरह से हम उनको नहीं कहेंगे कि वो बहुत स्ट्रिक्टली इन चीजों को फॉलो करें, लेकिन ये है कि वो शुगर, कार्ब्स और प्रोसेस फूड नहीं दें। ये हाँ इनका फोकस बिल्कुल। मेन ये होना चाहिए। एज ग्लूटेन और ये सारी डेयरी से ज्यादा इनका जो फोकस है वो प्रोसेस्ड शुगर और बाहर का जो खाना है उससे। और तीसरे नंबर पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर ये सारी चीजें आ रही है और बच्चा बहुत बेहतर है, तो फोकस मजीद न्यूट्रिशन पे ही रखें। ये नहीं कि उसको जंक वगैरह दें और वो खुदा ना खास्ता जो है वो फिर प्रॉब्लम करे बाद में उसको। ओके। एंड जिस तरह हम लोग जीएफसीएफ डाइट को ग्रेजुअली कम कर देते हैं, लाइक वापस चीजें ऐड ऑन कर देते हैं जब बैठ जाती है, तो क्या शुगर इनटेक जब हम कम करते हैं तो वापस से शुगर को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं बच्चे की लाइफ में जब उसकी चीज? हम्म। जो हमारी शुगर की ऑप्शन है वो ऑलवेज पेरेंट्स को दी जाती है, लाइक कोकोनट शुगर है, लिटिल बिट स्टीविया है, ऑर्गेनिक लाइक जो डेट्स है, ऑर्गेनिक मनुका हनी है। हम वो पेरेंट्स को बिगनिंग में भी बताते हैं कि अगर बहुत
लाइक पेरेंट बता रहे हैं बच्चा बहुत मीठा खाता है, तो पहले तो उन्होंने क्लीन तरफ जाना है ना, क्लीन ईटिंग हैबिट्स की तरफ जाना है, और वो मॉडरेशन में उन्होंने देना है। और जब हम सारी चीजों को रीइंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हमने फिर भी क्लीन से ही स्टार्ट करवाना है और ग्रेजुअली करवाना है। बाय द टाइम अगर बच्चा बिल्कुल सही है, मतलब उसके सारे चीजें जो है वो सेटल जा रही हैं, तो वो न्यूट्रिशन को उसी तरह से जो है ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग शुगर। लेकिन वो शुगर तो किसी भी इंसान के लिए सही नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चा बहुत उसकी हिस्ट्री में सारा कुछ चैलेंजेस रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि वो क्लीन शुगर जो ऑप्शंस है, लाइक हेल्दी ऑप्शंस है, हनी वगैरह और कोकोनट शुगर, उसी पे रहें। मेरा ख्याल है कंक्लूड कर लें आप किरण। जी, अब सदफ नाजिया, आप भी अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें ओवरऑल। बाकी जो क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं, आई वुड रिकमेंड कि वो ग्रुप में पूछ लें, जब मिस सदफ या डॉक्टर अजहर के पास जैसे उनको टाइम कन्वीनियंट होगा तो वहां आंसर कर देंगे, या फिर हमारा और अभी पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्कुल हमारे इंशाल्लाह और सेशंस होंगे, तो आप तब भी हमें ज्वाइन करके वहां पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और आप सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। नाउ ओवर टू यू मिस सदफ, आप क्या कंक्लूडिंग रिमार्क देना चाहेंगी? थैंक यू सो मच। आप सबकी किसी से कह लें कि आप बहुत माशाल्लाह सच्चे से सारी चीजों को मैनेज करते हैं, और ये मेरी एक विश थी कि एजुकेशन पे पाकिस्तान में स्पेशली जितनी हमारी मदर्स बात होती है उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमारे मेरे डॉक्टर अज़रा या जितने भी हम प्रैक्टिशनर काम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके काम को मजीद सपोर्ट कर सकते हैं। अगर माँ एजुकेटेड है, पेरेंट्स को पता है कि ये पानी नहीं देना, ये शुगर वाला आइटम नहीं देना, तो समझे उनकी इस एजुकेशन से हमारा जो ट्रीटमेंट होगा वो फंटास्टिक जाएगा। और थैंक यू सो मच आप सबके आने का, सेशन को ज्वाइन करने का, एवरी पेरेंट का और एवरी प्रैक्टिशनर का। आई एम रियली थैंकफुल और इस प्लेयर कि आप सभी के साथ मैं काम कर रही हूँ, और इस नेक काम में जो कि मुझे लगता है कि क़यामत तक सारे बच्चों के जितनी हम हेल्प कर रहे हैं, पेरेंट्स की कर रहे हैं, ये एक सदका जारी है, और अल्लाह ताला हम सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट सदफ। मेरा You're welcome. कंक्लूडिंग Thank you. रिमार्क ये है कि लेट्स वर्क ऑन इंटीग्रेशन ऑफ कन्वेंशनल मेडिसिन एंड फंक्शनल मेडिसिन, क्योंकि एक दूसरे को बुरा कहने से कोई हल नहीं निकलेगा, है ना। Exactly. हमें एक दूसरे की जरूरत है, हमारे बच्चों को जरूरत है ना। ओके, Thank you so much everyone. अल्लाह थैंक्स अ हाफिज। लॉट।